नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज JAIN और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Pradeep ji, so we've got 107 medals in the Asian Games. And reflects on leadership. I don't think we're going to get any more. Target 100 achieved. Target 100 surpassed by 7. So 107 medals. At one time it was looking somewhat difficult, but finally the boys and girls who are playing right there on the field, they really achieved it, and it was wonderful. And yes, there are a lot of people who say that, you know, the Indian men's kabaddi team should not have behaved the way they did, but I am so proud of the boys. They fought. देखिए साहब, जहां पर आपको लगता है कि नाइंसाफी हो रही है, आपको लड़ना पड़ेगा। वो लड़की को देखी ना, ज्योति राय जी को, she was accused of a false start, and later on it was found it was absolutely untrue, and she got a silver medal, which was fantastic. Now suppose she had not fought, suppose she had said yes, thank you very much, I am disqualified, I am going back home. Now there are a lot of dim-witted journalists, I must say, who are talking about how the Indian kabaddi team misbehaved. I don't think they misbehaved. I think they were right to fight for their rights, they were right to fight for their flag, they were right to fight for India. Exactly. And one should be very proud of them. Absolutely, sir. I mean, how can you leave Yes. 3 points that are, as you said, 3 points that were essentially ours? Yes. By keeping quiet, keeping mum, you're going to allow that to go. Why should you do that? You cannot. Because to reach the Asian Games, you have toiled so many days and nights to reach there. Yes. And then an unfair decision, you have, it's within the legal boundaries to challenge an unfair order. And you have to fight for your rights. Of course. Nobody gives you anything for free. Now if this had been the other India, Purana India agar hota, and by the way, I think we're showing the women's team, that of course is the men's hockey team, which have brought back the gold, which is amazing, absolutely amazing. But I tell you what, if it had been the other India, 10 साल पहले की अगर आप बात करें, 15 साल पहले की बात करें, तो बड़े प्यार से हाथ जोड़ करके बोलते हैं हाँ जी ठीक है. Very unfair to us. Oh, यहाँ पर बोलते हैं look at the unfairness, this, that, all that. Utter nonsense. You have to fight. This is the new India. This is Modi's India. Let's be very clear. किसी को पसंद हो ठीक है, ना पसंद हो, as that song says, तो जाके अपनी भैंस चराओ. सीधी बात है साहब. These boys had gone to fight for India, they fought for India, and they have won the gold medal. By the way, last time, in 2018, as you know, because of COVID, Asian Games were extended by a year. They ought to have taken place in 2022, they took place in 2023. Pradeep ji, we lost to Iran in the finals. This time, we have defeated Iran in the finals. It was a closely fought match, great match, but the Indians deserved to win, and that's it. That's what matters. The only thing that matters. Winning is That's matters it. Because the amount of practice that has gone, amount of decision making that has gone, amount of toil, turmoil that the athletes have gone through, blood, sweat, toil, and tears. And then how can you just let it go away? You can't. This is a resurgent India. Now it all reflects on the leadership. Once the leader said, "Get us 100." And the team, they got them 100. You got them 100. So next time, if Mr. Modi is elected, it's going to be target 200 or 250 or 300, whatever. And whatever usually is targeted, he achieves it because it's a realistic and reasonable target. And most importantly, Pradeep ji, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि you're right. Most importantly, you have to fight for your rights. Exactly. If somebody is being unfair to you, you have to fight back. How can you lose a gold when you know there's an unfair judgment, an unfair verdict against you? You have to fight for it. You have to fight for it. Now I am surprised at some of these TV anchors talking about how the kabaddi team has misbehaved. Do you guys know what it is like to play kabaddi, by the way? I don't think these jokers, these clowns would be able to last for even 1 minute on a kabaddi court. आज की जो नई वाली कबड्डी है ना, 1 मिनट नहीं खेल पाएंगे आप, 30 सेकंड नहीं खेल पाएंगे, हड्डियां टूट जाएंगी आपकी, बाहर हो जाएंगे आप. आपको मालूम है
what these guys have to go through. And the Iranians also fought, as was well within their rights. I'm very, very proud of both the teams. Fantastic. But the Indians won. That's what matters. What matters is who won. It's no longer a question of Pradeep. Well played. Pradeep ji, pehle hamara hota tha, I am so sick and tired. I was so sick and tired of hearing the term well played India. Well played. Utter nonsense. But we didn't win the medal. Accepted the ultimate decision without aggression. Utter all nonsense. Things of the past. Nonsense. If something is rightfully ours, which we deserve, we need to get it. So 107 medals. 3 cheers for the Indian team. For the Indian contingent, you've done us all proud. Really and truly proud of all of you. What you have achieved is absolutely fantastic. Really and truly fantastic. I think the Prime Minister is meeting the entire contingent on 10th. Yes. He's raising a toast in normal terms to the great performance by the Indian team. I wish he would open up a bottle of champagne, but then the Prime Minister is a teetotaler. Ganga Jal probably. or orange juice. Yes. But I miss those times, you know, open up a bottle of champagne, give everybody a glass of champagne and raise a toast. That's what we need to do, by the way. We need to go back to our culture, we need to go back to what we were, not the puritanical dopes that we have become now. Why are we showing this again and again and again? I mean, the same ceremony we are showing again and again. We're showing the Indian flag rising all the time. Yes, which is lovely, which is absolutely lovely. Absolutely fantastic. Do we have the guest with us? Do we have Prerna Onra with us? Is the guest with us? Yes? Not yet. All right. I think she'll be with us very, very shortly. But really lovely. Except the only thing is, as far as the India versus Afghanistan match is concerned, there I tend to somewhat cavil at the decision that it was a washed out match, rained out match, and India was awarded the gold medal because India's ranking is much higher in the cricketing world. So maybe, I don't know, maybe a reserve day could have been kept. After all, it's a cricket match. These rules are decided, pre-decided probably. Yes, they are. And nothing happens on the last moment. And but India giving up would have been a great gesture, but why should... No, why should anybody give up? I agree with you. Why should anybody give up? But at the same time, because since it's cricket, and cricket really cannot be played in the rain, and you're not playing in a covered stadium. So if a reserve day had been kept, at least for the final, for the gold medal match, that would have been nice. So maybe the whole thing could have been replayed tomorrow. But then that didn't happen. So India has won the gold medal there too. It's raining everywhere. Yes, it's raining. All over the place. But really and truly lovely. I'm so happy for our sports people. Absolutely fantastic. Absolutely, totally fantastic. And that reflects, as you said, on leadership. If the Prime Minister himself is taking, you know, great interest in what you're doing, if the Prime Minister himself is focused totally on sports, on the youth, this is the kind of result that you can expect. And I think the next term he will be more focused because probably he's got everything set up now. And 2 terms, and the 3rd term he will be focusing more on these kind of issues where sports are concerned, where other matters which he has not. Now the borders are safe, India has become a superpower, Indian external affairs is doing fantastic, foreign policy is absolutely good. Yes. Governance is nearly good because the country believes in where national security and nationalism is concerned, and they believe that Mr. Modi cannot do anything wrong where national policies are concerned. So everything is going on fine, and it's time for him to concentrate on sports and making India a sporting giant where sports are concerned, where we dominate the world. At least the Asian Games. Pradeepji, we should. I mean, you look at other countries. You know, I'm waiting for the day when an Indian team will be part of the World Cup and perhaps reach the finals. That would be fantastic. I'm talking about the Football World Cup, not the Cricket World Cup. You know, small countries like Uruguay, Paraguay, Scotland, places which have, you know, a population of just about 5 million, which is about 50 lakhs, and they are doing so well in football, and we are not able to. I mean, we are 142 crore people, और वहाँ पर देखिए सिर्फ 50 लाख लोग हैं, कहीं पर 25 लाख लोग हैं, और माशाल्लाह ज़बरदस्त उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है. So I think it requires a lot of dedication. I don't say facilities because now the facilities are there. Facilities हैं, सब कुछ है. अब मुझे लगता है
अब खिलाड़ियों के ऊपर। But sir, the African countries, a kid that is born, most of them are totally devoted towards football. Yes. You know, even if he's going to the school, you find him jogging and going to the school. If he's going to work, he will be jogging and going to work. I mean, they are so committed towards, especially where football is concerned or these kind of sports is concerned. So they are devoted on their own. Yes. I think there's not much of support from the government. That's right. But they do it on their own. They do it on their own. Yes. आप देखिए ना सर, हमारे अविनाश साबले साहब को देखिए, अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में थे, अभी सॉरी कॉमनवेल्थ में जो थे, he actually was able to get in between the Kenyans. There was Kenya gold, India silver, Kenya bronze. This man has actually won the 3000 meters steeplechase now in the Asian Games. Wonderful. Or steeplechase में, which has been, by the way, a monopoly of the African nations. Avinash Sable was actually able to win a silver medal, defeating Kenyans, Nigerians, Ethiopians, and others. And it was fantastic. And that of course. And again, in sports, the rags to riches Yes. stories. Yes. The rags to riches stories after the country saw Mr. Modi, a rags to riches story that a poor man born and selling tea can reach the highest pedestal in public life. Gee. Narendra Modi, not only to the whole the country but to the whole world. And now you find in every field young, poor, rags to riches stories. Absolutely amazing. But Pradeep, India is a vibrant democracy. But over here we must compliment the system. Sports Authority of India का जो system है, like for example picking up that Jyoti Raji, that girl. Yes, exactly. You know, picking her up and sending her off to Assam to get trained under a British coach. That's the Sports Authority of India, Government of India. Avinash Sable, Havaldar in the army, picking him up, sending him off for proper training, even to Europe. Kishore Kumar Jena, javelin thrower. India wins the gold, India wins the silver. Now that is amazing. That's, I mean, words can't describe it. This is absolutely fantastic. Where archery is concerned also, irrespective of the Asian Games, I mean, we have a lot of tribal people coming out and performing exceedingly well in many of these sports. Absolutely. Not on it. It shows how vibrant our system is. देखिए साहब, आर्चरी जो है, मुझे एक चीज बोलनी पड़ेगी. आर्चरी जो है, तीरंदाजी जिसको कहते हैं, याद रखें, ये लोग भूल जाते हैं, बड़ी आसानी से भूल जाते हैं. मैं बात कर रहा हूं 1985 की, 1985-86 की. विजय कुमार मल्होत्रा, भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार मल्होत्रा प्रेसिडेंट हुआ करते थे आर्चरी एसोसिएशन के. उन्होंने उठाया, एक आर्चर होता था लिम्बाराम उसको, और वहां से आर्चरी का भारत में सफर शुरू हुआ. So do remember that when you look at count the gold medals today, don't forget our friend from Delhi, the MP from South Delhi of the Bharatiya Jan Sangh, later the BJP, Vijay Kumar Malhotra ji. Now, you've got to remember these guys. These guys have really worked very, very hard. It is the foundation that they laid at that time, whose fruits are being born now. And at the moment with us from the BJP, we have Prerna Honrao ji. प्रेरणा जी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. वंदे मातरम. वंदे मातरम. तो आपको बधाई हो, शुभकामनाएं, पूरे देश को बधाई हो. 107 मेडल मैडम, 107, 107 एशियन गेम्स मेडल्स. अमेजिंग. प्रधानमंत्री जी ने बोला इस बार 100 पार हो गए. 107. क्या बात है साहब. वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल. आपको भी आप दोनों को भी ढेर सारी बधाई. थैंक यू सो मच. जी मैम. लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी जब कोई टारगेट सेट करते हैं तो ज्यादातर वो टारगेट जो है पूरा हो जाता है. लग ऐसा रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री ने कोई टारगेट दिया है, मोदी जी ने, भले पार्टी को दिया है, देश को दिया हो, स्पोर्ट्समैन को दिया हो, वो ज्यादातर टारगेट पूरा हो जाता है. ज्यादातर. आपको क्या लगता है, ऐसा होता है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है. क्या है वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमने सुना है जी. तो जो कर्म करते हैं डेडिकेटेडली 24/7 365 डेज देश के लिए सोचने वाले प्रधानमंत्री जब मिलते हैं जी. तो हर एक सेक्टर में हमें ऐसा ही रिजल्ट मिलता है. और मुझे लगता है ये वो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली ही कहानी है, जिस वजह से जिस सेक्टर में हम हाथ डालेंगे उस सेक्टर में हमें सक्सेस मिलता है. वंडरफुल मैम, एब्सोल्युटली वंडरफुल. और जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने नया टारगेट दिया है बीजेपी को. अभी आपको 350 सीट जीत के आनी है लोकसभा में.
लोकसभा 2024 में 350 प्लस। नड्डा साहब ने बोला है, जेपी नड्डा साहब ने, लिहाजा प्रधानमंत्री जी से बात हुई होगी तभी बोला है। तो आपको लगता है कि 350 प्लस आएंगी बीजेपी की? अभी जैसे आपने बोला कि मोदी जी, आपका कहना था कि जब ठान लेते हैं तब वो सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, तो देश में जिस तरीके से पूरे देश में काम हो रहा है वो देखते हुए अगली बार 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री 350 पार 400 तक सीट्स भारतीय जनता पार्टी की जा सकती है। लोगों का जनमत और जन भागीदारी से होने वाली हर एक चीज जो देश में हो रही है वो देखते हुए जनता मोदी जी और जो खुशी का माहौल है, हर महीने में ऐसे कुछ होता है जिसके बाद वोटर को लगता है कि अभी एक वोट दिया कितनी बार दिल जीतोगे मोदी जी। तो ये 350-400 इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। 350-400 नॉट डिफिकल्ट थिंग। प्रदीप जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, प्रेरणा जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा ये हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, हम जेन्युइनली वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल अपलिफ्टमेंट में बहुत बिलीव करते हैं, ये हमारे लिए नेशनल वेलफेयर एंड नेशन बिल्डिंग है, ये नेशन बिल्डिंग का एक्सरसाइज है। मगर कांग्रेस का कहना है कि देखो ये एक जुमला है अच्छे दिन जैसे, ये एक जुमला है 15 लाख जैसे, और कांग्रेस बोल रहे कि हम इसको एनफोर्स होने नहीं देंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरे हर सभा में कहा कि एम्पावरमेंट कहां हो रहा है, वी हैव सपोर्टेड द बिल बट वेयर इज द एम्पावरमेंट, वेयर इज द डेट? प्रेरणा जी, मुझे ऐसा लगता है कि बात करना और काम करना इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रियंका जी ने बीच में कुछ नारा दिया था और हम देख रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल लेगेसी लेकर और खुद के परिवारवाद को देश के सामने रख कर अगर कोई बार बार वोट मांगता है तो उसका क्या होता है वो हम देश में अभी देख रहे हैं। मोदी जी ने जो किया है वो किसी वोट के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं किया है। हम देख रहे हैं जिस परिस्थिति में ये बिल लाया गया, जिस इंटेंशन से बिल लाया गया, उसके बाद कुछ करना है ऐसे नहीं है। इसके पहले भी 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं हम देख रहे हैं मेजॉरिटी अभी भी, अगर आज 2023 में हम देखें तो अच्छे मिनिस्ट्रीज महिलाओं को पहले ही दी गई है। इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वुमेन मिनिस्टर्स मोदी गवर्नमेंट में अभी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो करते हैं और उसके बाद बात करते हैं उन पे भरोसा ज्यादा रखना जरूरी है। आज के दिन परिवारवाद वाली कहानी और फिर ये सब जात धर्म और इन चीजों को लेकर हम लोगों के सामने जाएंगे तो करने वाले मोदी जी बैठे हैं, इनकी सारी स्टोरीज सामने आ रही है, तो हम देख रहे हैं इसके नतीजे क्या आ रहे हैं देश में। तो प्रियंका जी ने कुछ कहा था नारी शक्ति के बारे में, मुझे याद है कुछ पिछले चुनाव में कुछ उनका कोई स्लोगन वगैरह था, लड़की हूँ कर सकती हूँ, ऐसा कुछ था, कुछ याद है मुझे, लेकिन लोगों ने ज़रा सुना नहीं। मतलब क्या हो सकता है कि वी नॉट एबल टू कम्युनिकेट और व्हाट हैपेंड? राजीव जी, लोग तभी सुनेंगे जब लोगों को कहने वाला व्यक्ति उसके बाद में क्या कर रहा है इसका पिछले 70 साल में हमने देखा है। किसने रोका था ये बिल लाने के लिए, क्यों नहीं लाया गया ये बिल? अगर कोई ला रहा है, महिलाओं को अपना न्याय दे रहा है, तो ऐसे प्रधानमंत्री जी के सामने आप कुछ बात ही नहीं कर सकते हो। जब आपका काम करने का टर्न आया था तब क्या क्या हुआ ये देश ने देखा हुआ है। तो ऐसे स्लोगन्स देने से कुछ बनता नहीं है, काम करके मोदी जी ने ये बिल लाया है तो उन पे भरोसा, उनके विचारों पे भरोसा देश की हर एक नारी शक्ति को है। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको लगता नहीं कि पिछले 5 के 6 के 7 साल में भारत का जो चरित्र है वो बदल गया है? मेरी समझ में, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, कितने 42-43 साल हो गए मुझे जर्नलिस्ट। मैंने कभी भारत को अपने हकों के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए इस प्रकार अग्रसर पहले कभी नहीं देखा है। पहले क्या होता था, हम लोग हाथ जोड़ करके बैठ जाते थे, अच्छा भाई ठीक है यार, क्या है, वी आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। लेकिन आज की तारीख में आज का भारत हार नहीं मानता है। आप मानेंगे इस बात को? मैं अभी राजीव जी ऐसी कितनी बातें हम बता सकते हैं जो आज का भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है, ये हमने देखा है। वो काम करके हो, अपने एनिमी कंट्रीज के लिए हो, देश के नागरिकों के लिए हो, इंटरनेशनल अफेयर्स के रिलेशनशिप्स के लिए हो, हमने
जो भी स्ट्राइक्स देखे देश में, ये ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले थे। अगर कोई हमारे ऊपर उंगली उठाता है, गलत नजरिए से देखता है, तो उनका क्या हश्र हो सकता है, ये मोदी जी ने दिखाया था हमें। देश में जब काम कर रहे हैं, हर एक सेक्टर में आप जिसका नाम लेंगे वहां पे हम उनकी उपलब्धियां गिना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्वाभिमानी प्रधानमंत्री जब से माँ भारती के सुपूत हमें मिले हैं, तब से ये स्वाभिमान और देश में ओवरऑल जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है वो हम उस स्वाभिमान की वजह से देख रहे हैं। हम खुद अपने बलबूते पे दुनिया के नक्शे पर अच्छी तरीके से खड़े हो सकते हैं। ये आत्मविश्वास मोदी जी ने देश को दिया है। प्रेरणा जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, सबका कहना है कि डिमांड फॉर मनरेगा का डिमांड हैज इंक्रीज 30% इन द पास्ट 4 ईयर, 4 साल में इंक्रीज हो गया, बिकॉज हाउस होल्ड इनकम जो रूरल एरियाज में वो कम हो गया है, एंड इन्फ्लेशन, प्राइस राइज इतना बढ़ गया कि लोग घर घर भटक रहे हैं नौकरी के लिए और मनरेगा के अंदर काम करने के लिए। बोल रहे हैं कि उनका कहना है कि सिर्फ 4% मनरेगा का फंड्स बचा हुआ है, और इसके ऊपर मोदी साहब को दोषी ठहराते हैं कि 33% मनरेगा के बजट मोदी साहब ने कम किया। दे सेइंग रूरल इंडिया इज सफरिंग, द डिमांड फॉर मनरेगा इज इंक्रीज, प्रेरणा जी, एंड मोदी साहब इज रिस्पॉन्सिबल। नामदेव जी, मुझे ऐसे लगता है कि ये अभी परिवारवादी कहानी के लिए 1-2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। अगर हम इनके कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर जाएंगे तो हमें वही घिसी पिटी कहानी बार बार सुनने को मिलेगी। मुझे याद है मोदी जी ने मनरेगा की ही कहानी देश को बताई थी। वो स्पीच अभी तक मुझे याद है। मोदी जी ने बोला था कि ये कांग्रेस की असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण मनरेगा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सच में अगर मनरेगा के काम को लेकर किसी ने काम किया है तो वो मोदी जी है। हम अगर पिछली 2014 के पहले आंकड़े अगर हम देखें मनरेगा के, तो मनरेगा का काम जहां पे होता था, जिस स्टेट्स में होता था, वहां का बजट अगर हम देखेंगे और वहां पे होने वाला काम अगर देखेंगे, तो मोदी जी ने कुछ ट्रिमेंडस चेंजेस किए जिसकी वजह से कांग्रेस का पूरा पर्दाफाश हो गया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मनरेगा सिर्फ मेडिएटर्स को बीच में पैसा खिलाने वाला प्रोसेस बना था हमारे देश में। उस अंत्योदय वाली संकल्पना जिसके लिए वो बनाया था मनरेगा, उसके पास वो पैसा जा ही नहीं रहा था। मोदी जी ने 2014 के बाद में वो हर एक व्यक्ति को आधार कार्ड के जरिए रजिस्टर करवाया, उसका पैसा उसके अकाउंट में जाएगा, उसके डिटेल्स सरकार के पास जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का उदाहरण अगर हम लेंगे तो वेस्ट बंगाल जैसे राज्य में कुछ इंडस्ट्रीज नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, उनके पास कुछ एजेंडा नहीं है। मनरेगा के पैसों का हिसाब आज तक 2014 के पहले का हिसाब, आज का भी हिसाब पश्चिम बंगाल नहीं दे सकता है। जब मोदी जी आए तब उन्होंने इसको क्रिस्टल क्लियर करने का काम किया, और मैं आपको उसी नजरिए से बताना चाहती हूँ, कांग्रेस को ये हजम नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में जो बिचौलिए उन्होंने बिठाए थे वो अभी उनका पैसा बंद हो गया है, कांग्रेस को पैसा मिलना बंद हो गया है, इसकी वजह से ये रोना है। आज अगर 2006 से 2014 तक का हम पैसा देखेंगे, 2,13,220 करोड़ रुपया फंड रिलीज मनरेगा के लिए हुआ था। लेकिन 2014 से 2023 तक का हम प्रवास अगर देखेंगे तो 5,76,303 करोड़ रुपया फंड रिलीज मनरेगा के लिए हुआ है। इसमें नंबर ऑफ वर्क्स कंप्लीटेड अगर हम देखेंगे तो 2006 से लेकर 2014 तक 153 लाख वर्क्स कंप्लीटेड थे, और आज के दिन अगर हम देखेंगे 2014 से 2023 तक तो 602 लाख वर्क्स कंप्लीटेड है। तो मुझे लगता है, जैसे राजीव जी ने अभी बोला था कि मोदी जी जो भी करते हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, कांग्रेस के पेट में अभी दर्द हो रहा है कि जो बीच का पैसा खाने का जो उनका प्रवास था वो बंद हो गया है, इसलिए इनके परिवारवाद को, इनके थॉट प्रोसेस को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो मोदी जी की तरफ अपनी हाथ दिखाते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, जो इतने अकाउंट्स खोले गए, जनधन अकाउंट्स खोले गए, उसे डायरेक्टली हर एक अकाउंट में पैसा गया, उससे तो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना हुई है। आज तक भले वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, हर एक कोई ये पॉइंट आउट करता है कि भाई इंडिया की एग्जांपल देखिए, यूपीआई पेमेंट्स हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो,
इतने बड़े पैमाने पर आज तक कभी पेमेंट्स डायरेक्टली रिलीज नहीं हुई हैं पूरी दुनिया में। इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब जबरदस्त है बिल्कुल। जी राजीव जी, लेकिन फिर भी आज की तारीख में ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात कहां से आती है? बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स हैं, बेरोजगारी के जो फिगर्स हैं, दे आर गवर्नमेंट फिगर्स कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं हैं, सरकार में इतनी नौकरियां नहीं मिली हैं। तो ये मंशा कब चेंज होगी? क्योंकि जैसे मोदी जी ने खुद कहा कि सिर्फ सरकार नौकरी नहीं देती है, हम वो वातावरण हम लोग पैदा करते हैं जहां पे आप खुद नौकरी क्रिएट कर सकते हैं, काम क्रिएट कर सकते हैं। प्रेरणा जी, विषय ऐसा है कि मोदी जी ने जब एम्प्लॉयमेंट के लिए एजेंडा दिया था, तब उन्होंने दो बातें अंडरलाइन कही थी। एक तो मैं देश में ऐसा युवा बनाना चाहता हूं जो खुद अपना व्यापार करे, खुद अपना एंटरप्रेन्योर बने, खुद के दम पे अपना रोजगार अपना तैयार करे और अपने साथ 10 लोगों का तैयार करे। हमने कोरोना के ड्यूरेशन में, उससे पहले भी एमएसएमई का काम देखा। तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन खुद अपना युवा ही करे, इस पे मोदी जी ने ज्यादा जोर दिया था। इसलिए अभी अगर हम स्टार्टअप्स का रेशो देखेंगे तो ट्रिमेंडसली हम एक इंक्रीज्ड मोड पे गए हैं, जहां पे हमने स्टार्टअप्स क्रिएट किए गए हैं। तो ये सारे स्टार्टअप्स एक नहीं, ऐसे हर एक अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से युवाओं को रोजगार दे रहा है। तो मोदी जी ने इंडिपेंडेंट युवा, डिपेंडेंट युवाओं से ज्यादा इंडिपेंडेंट युवाओं को बनाने के बारे में सोचा है और उसी को लेकर वो काम कर रहे हैं। और उसके नतीजे जैसे नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बढ़े हैं। कोविड में तो हमने देखा बहुत सारे युवाओं ने उसका लाभ उठाया था, बहुत सारे युवाओं को उसके लिए फंड्स मिला, तो वो अपने बलबूते पे खड़े हो रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना जो मोदी जी ने लाई थी, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए ही है। अभी कांग्रेस इसमें से कुछ भी पिछले 70 सालों में नहीं कर पाया, इसलिए ये बार बार का रोना है जो हम सब लोग समझ सकते हैं। प्रेरणा जी, सुप्रिया सुले जी ने हाल ही में कहा कि वी रिफ्यूज टू ज्वाइन बीजेपी। पवार साहब, शरद पवार साहब रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ बीजेपी। बीजेपी फैमिली को भी तोड़ दिया, पार्टी को भी तोड़ दिया। अजित पवार इज क्लेमिंग सिंपल एंड पार्टी। वहां अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि फिर बोला उद्धव सेना की वही कर दिया, साथ में नहीं आए तो पार्टी तोड़ दिया। केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हमारे सब लोग को अरेस्ट करना शुरू कर दिया बिकॉज वी आर चैलेंजिंग नरेंद्र मोदी जी। तो अलग अलग किस्सा आ रहे हैं जो राहुल गांधी जी पहले कर रहा है कि ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड बाय नरेंद्र मोदी जी एंड ऑल द एनफोर्समेंट एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज आर टारगेटिंग द ऑपोजिशन। बहुत उन्होंने एक से एक चीज गिनाया कि अक्टूबर 2 से जिस प्रकार से जर्नलिस्ट पे अटैक हो गया, न्यूज क्लिक में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिए, संजय सिंह को अरेस्ट कर दिया, आईटी डिपार्टमेंट रेड्स इन डीएमके एमपी जगत रक्षणन। तो अलग अलग जो ऑपोजिशन लीडर्स आर बीइंग टारगेट। तो क्या ये आरोप जो सुप्रिया सुले, राहुल गांधी जी वगैरह लगा रहे हैं कि मोदी जी वांट्स टू डिस्ट्रॉय एंड टारगेट द ऑपोजिशन, क्या इसमें कोई सच्चाई है प्रेरणा जी? ये आपको भी पता है ना अंबेर जी, ये सब लोगों का साइकोलॉजी जो इन्होंने INDIA क्रिएट किया हुआ है, ये सब लोग एक ही भाषा बोलने वाले हैं। इन सब का एक ही प्रॉब्लम है जो उनको दिखाई दे रहा है, और वो है नरेंद्र मोदी जी। तो अभी जो भी कुछ अभी उनके साथ हो रहा है, वो सरकार में अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, कई जगह पे नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी भविष्य की और जब जा रहे हैं, तब जो उनको दिखाई दे रहा है उसकी वजह से ये तिलमिलाहट हो रही है। तो हर एक कोई जो अपोजिशन में बैठा है वो मोदी जी का नाम लेकर ही आगे जा रहा है। मोदी जी को जितना आप गलत तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वैसा वोट मिलेगा, ऐसा सोच रखने वाले ये लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज वो उनका प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी बात क्या करें, तो जो भी कुछ है वो मोदी 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 और सिर्फ मोदी है। लेकिन एक चीज है प्रेरणा जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 पार्टियां जो थी जो मराठी लोगों ने बनाई, एक एनसीपी 1999 में और उसके पहले शिवसेना 1966 में, उन दोनों को तोड़ दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। क्या बीजेपी ने तोड़ा प्रेरणा जी? क्वेश्चन दिस इज वेरी मतलब अगर आपको सरकार में, अभी मैं शिवसेना की अगर बात करूंगी तो आपको जो भी कुछ है, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो युति का वादा किया था वो आपने तोड़ दिया।
आपने महाविकास आघाड़ी बनाई, उसके बाद इतना बड़ा कोरोना आया, काम करने का इतना बड़ा मौका आपको मिला था, लेकिन आप घर से बाहर नहीं निकले। लोगों को तो छोड़िए, आपके एमएलएस को तक आप नहीं मिल पाए। आप घर में बैठ के लाइव सेशन के माध्यम से आप हर एक से बात कर रहे थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री किसको अच्छे लगेंगे राजीव जी, जिनको जो कह रहे हैं कि ये हमारे बलबूते पे मिला है, लेकिन काम करने का कोई मंशा ही नहीं है। उनके एमएलएस अगर उनके हाथ से छूट रहे हैं तो, और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ, मोदी जी बैठे हैं ऑपोजिशन में, देवेंद्र फडणवीस जी बैठे थे ऑपोजिशन लीडर बनकर, उन्होंने ज्यादा काम किया। सीएम से ज्यादा काम ऑपोजिशन लीडर ने किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। जमीनी स्तर पर वो पूरी तरीके से काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इसका अट्रैक्शन हर एक पार्टी को, हर एक एमएलए को, हर एक नेता को हो ही सकता है कि हम मोदी जी से जुड़ना चाहते हैं, उनके काम से जिसको काम करना है वो ऐसे घर में बैठ नहीं सकते हैं। तो जो घर में बैठे उनके साथ इनको जाना ही नहीं था। इसमें भारतीय जनता पार्टी के काम का एक अट्रैक्शन है, मोदी जी का अट्रैक्शन है, मोदी जी ने जो प्लेटफॉर्म्स दिए हैं काम करने वाले लोगों को, उसका अट्रैक्शन है। तोड़ने मरोड़ने की बात ही नहीं आती है। प्रेरणा जी, आदित्य ठाकरे जी ने हाल ही में कहा कि कर्नाटक गवर्नमेंट वाज 40% कमीशन करप्ट गवर्नमेंट, एंड लोगों ने ठुकरा दिया। आदित्य ठाकरे जी का कहना है कि महाराष्ट्र इज 100% करप्ट सरकार। वो कहते हैं कि ये खोखे सरकार है, ये बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर सरकार है। बोले कि 6000 करोड़ का रोड स्कैम मैंने खुद असेंबली में उठाया था, गवर्नर को दिया था। 356 करोड़ का स्ट्रीट फर्नीचर का स्कैम हमने गवर्नर को भी दिया था, कुछ नहीं हो रहा है। बोले ये घटना बाहर का सरकार है, और इट्स अ डेंजर टू लोकतंत्र, इट्स अ डेंजर टू डेमोक्रेसी। आदित्य ठाकरे सेज दिस सरकार इज अ ग्रेट डेंजर टू डेमोक्रेसी। प्रेरणा जी, जिन्होंने युति तोड़ी, जो लोग अनैसर्गिक युति जिन्होंने की, वो डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं? मोदी जी के नाम पे आपने वोट मांगा और उसके बाद आप और किसी के साथ चले गए, वो डेमोक्रेसी की बात कैसे करेंगे? जिनको सरकार चलाने का चांस दिया था, उन्होंने एक नहीं ऐसे 100 वजह हमने, हमारे महाराष्ट्र ने देखे। हमने देखा जो भी कुछ हुआ एमबीए में, वो बहुत नजदीक से महाराष्ट्र ने देखा। तो ये लोग डेमोक्रेसी की बात कैसे करेंगे? और सबसे बेसिक सवाल है मेरा, जो पॉलिटिकल लेगेसी, परिवारवाद लेकर आए हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी की बात ही नहीं करनी चाहिए। जो परिवारवाद को चला रहे हैं वो डेमोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ परिवारवाद चला रहे हैं। तो ये लोगों ने डेमोक्रेसी की भाषा और डेमोक्रेसी के बारे में बोलना ही गलत है। और रहा सवाल कर्नाटका का जो उन्होंने उठाया है, मैंने 100 बार बोला है कि इलेक्शन आया तब आपने कुछ सवाल उठाया, उसके बाद आप गायब हो गए। आप जाइए लड़िए उस सवालों के लिए। आप जो भी कुछ कह रहे हैं उसके लिए लड़ना होगा, उसको प्रूव करना होगा। इस तरीके से हवा में बात करके कुछ चलेगा नहीं। डेमोक्रेसी की बात तो ये करे ही ना। लेकिन यही चीज मध्य प्रदेश में कही जा रही है। उधर 40% की सरकार के स्लोगन को लेकर के कांग्रेस को बहुत एडवांटेज मिला। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है 50% की सरकार है। तो क्या मध्य प्रदेश में कुछ एडवांटेज मिलेगा कांग्रेस को? देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने वहां पे इतने अच्छी तरीके से मध्य प्रदेश में काम किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़िया संगठन मध्य प्रदेश में काम करता है। तो ये सारी चीजों के बारे में अभी ये अभी पुराना हो गया राजीव जी। तो उनकी टिकट कब अनाउंस हो रही है मैडम? उनका कैंडिडेचर तो अनाउंस कर दीजिए। शिवराज सिंह चौहान साहब की तो लिस्ट पे नाम ही नहीं आया अभी तक। अरे वो पार्टी डिसीजन है जी। नॉट से एनीथिंग अबाउट। प्रेरणा जी, एमपी के बारे में बात करें तो प्रियंका गांधी जी का वहां पर जबरदस्त कैंपेन रहा। बोले कि मोदी सरकार इज टॉकिंग अबाउट वाइपिंग करप्शन। बोले दैट इज राइट, बट व्हाई करप्शन विद इन द बीजेपी? उसको आप वाइप आउट क्यों नहीं करते हो? उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते हो? मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि व्यापम घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला था। व्यापम घोटाला में 50 लोग वेरी डूबियस सर्कमस्टेंसेस में मारा गया। कैसे मारा गया ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वे करप्शन इज कंसर्न विद इन द बीजेपी, और बीजेपी रूल स्टेट्स में होता है। तो मोदी जी ईडी, सीबीआई और सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल नहीं करता। क्यों नहीं करते? तो एक प्रश्न तो आपको बोलना ही पड़ेगा, व्हाई इज नॉन बीजेपी पीपल ओनली बीइंग टारगेटेड विद करप्शन इज कंसर्न? प्रेरणा जी, ये बहुत बड़ा एक्यूजेशन है आप पे बीजेपी पर।
बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैंने महाराष्ट्र में देखा है, मैं महाराष्ट्र में काम करती हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी ने एक नहीं 100 बार बोला है, आपको अगर कुछ लगता है, मैंने बोला कि सवाल उठाइए, अगर आपको कुछ लगता है तो सवाल उठाइए। डेमोक्रेसी की बात करते हैं आप, वाई आर यू नॉट रेजिंग द क्वेश्चंस? आप सामने वाले को सवाल उठा रहे, आपके पास जो पावर्स है उसका यूटिलाइजेशन आप नहीं करते, आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, हवा में बातें हो रही है। जिनके ऊपर कार्यवाही हुई थी वो सारे लोगों के लीगल मैटर शुरू है, उसके लिए कोर्ट तो हमारा सबसे सुप्रीम है, तो वो हर जगह पे लड़ाई अपनी अपनी अपने अपने लोग लड़ रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करके कुछ फायदा हो सकता है क्या देखने का? साइकोलॉजी है, दैट्स इट। राइट, प्रेरणा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। 107 मेडल्स मैम, 107 मेडल। Modi ji, target 100 achieved. Yes, wonderful. We've crossed the target, 107 medals. Wow. Thank you. Namaskar, Vande Mataram. Namaskar, Vande Mataram. This is amazing, absolutely amazing. Oh God, I'm so happy. I am really and truly happy. 107 medals. At the moment with us from the Congress Party, Mr. Bharat Singh. Bharat Singh Sahab, namaskar. नमस्कार। Vande Mataram sir, Vande Mataram. How are you sir? Bharat Mata की जय, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद। आपको शुभकामनाएं सर। बच्चों ने 107 मेडल लेकर आए सर, 107 मेडल्स। कमाल हो गया सर, कमाल। एशियन गेम्स में पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। उन सभी खिलाड़ियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने देश के लिए मेहनत करके इतने मेडल लाए और देश का जो है सर जो है वो गर्व से ऊंचा किया। फैंटास्टिक, 140 करोड़ भारतीयों का आज जो है सर गर्व से ऊंचा जिन खिलाड़ियों ने किया उनका बहुत बहुत मैं आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। और पीछे उनके पीछे जो उनका परिश्रम है उसके लिए सैल्यूट। एब्सोल्युटली। सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हॉकी का गोल्ड मेडल हमारे पास वापस आया यार, इतने सालों के बाद। बहुत सालों के बाद जी, जबरदस्त, बिल्कुल। लेकिन उन खिलाड़ियों का हौसला अगर न तोड़ा जाए तो बहुत अच्छा है। सर नहीं टूटेगा सर, मुझे नहीं लगता, पूरा देश साथ में खड़ा है उनके। लेकिन इसी देश में तोड़ा गया है, आपने देखा है। जी सर, इशारा मोदी जी पे है, मोदी जी तोड़ेंगे। हाँ करेक्ट है, तोड़ा तो गया है बेचारा बजरंग। सर बजरंग पुनिया को देख लीजिए, बजरंग पुनिया को देख लीजिए, ही वाज सो डिमोरलाइज्ड, बेचारा खेल ही नहीं पाया अच्छे तरीके से। खैर उसके बारे में कभी और बात करेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि हमारी महिला पहलवानों का किस तरह से अपमान किया गया है, किस तरह से। इसलिए इस बार महिला पहलवानों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सर ये बताएं कि मध्य प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यार हमने इतना ज़बरदस्त काम किया, देखिए तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान मामा जी, इतना ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, कहने की हद नहीं। लेकिन अभी तक उनका लिस्ट में नाम नहीं आया सर, मतलब बीजेपी के जो कैंडिडेट की लिस्ट है, उम्मीदवारों की लिस्ट में बाकी सबके नाम आ गए, उनका नाम अभी तक नहीं आया। उसके पीछे वो क्या, ये मिस्ट्री क्या है? मतलब कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाजपा की स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता महोदय बैठी थी, शायद मुझे लगा कि वो इसका विश्लेषण जरूर करती। नहीं किया उन्होंने कहा वो पार्टी का मैटर है, अवॉइड कर दिया। देखिए भाजपा के लोग, मैं तो सोच रहा था कि उस दिन डिबेट बहुत अच्छा कराया था नामबियार जी ने, मुझे भी लगा शायद आज भी डिबेट है, तो मजा आता जब कोई सामने रहता है सवाल पूछने में। लेकिन अब क्या है कि सवाल भी आप पूछे और जवाब मैं दूं तो कुछ मजा नहीं। मैं इतना जानता हूं कि देश में जब भाजपा ये सवाल करती है और ये पूछती है कि देश में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, मैं आपके चैनल के माध्यम से हजारों जो व्यूवर्स है देख रहे हैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो है मुख्यमंत्री का चेहरा, चाहे वह मध्य प्रदेश में हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वह राजस्थान में हो, वो कौन है भाई? आपका चेहरा कौन है? क्या देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं क्या? क्या देश के प्रधानमंत्री अब एक विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं क्या?
तो ये देश को, भाजपा के नेताओं को, भाजपा के प्रवक्ताओं को आगे बताना चाहिए। दुरुस्त बात भरत सिंह जी, दुरुस्त बात। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत एक ऐसे वार्ता बोले हैं ड्यूरिंग वन ऑफ द इलेक्शन मीटिंग्स। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने टॉप डिसीजन मेकिंग जो होता है आउटसोर्स किया हुआ है। बोले कि कांग्रेस के अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनको बोलने नहीं देता, उनके मुंह पर टेप लगा हुआ, मुंह बंद कर दिया, उनको बोलने, उनका विचारों का कोई सम्मान नहीं है। और जो आउटसोर्स किए हैं डिसीजन मेकिंग जो कांग्रेस के, वो देश हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, ये मोदी जी का कहना है। और फिर उन्होंने अलग अलग फिर बीजेपी का सोशल मीडिया चालू हो गया कि चाइनीज गांधी, चाइना, पाकिस्तान, कांग्रेस। तो क्या ये हकीकत है, मोदी जी को खबर मिला है कि आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो आउटसोर्स किया गया है? भरत सिंह जी, नामबियार जी, यह उस व्यक्ति ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, और उन्होंने अपने मन की बात कही है। देखिए, वो मन की बात बहुत ज्यादा कहते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो है वो छूट नहीं है, आजादी नहीं है। जिसने देश को आजादी दिलाई वो अब उस पार्टी में आजादी नहीं है। मैं समझता हूं उन्होंने अपने मन की बात कही है, लेकिन इसका उल्टा समझिए आप। उन्होंने ये कहा है कि मैं जब तक प्रधानमंत्री हूं, मेरी पार्टी में किसी को आजादी नहीं है बोलने की। जिसको मैं किसी भी कैबिनेट मंत्री को ये कहूंगा कि जाके विधानसभा लड़ना है तो फिर उससे लड़ना है। किसी भी सांसद को कहूंगा कि जाके विधानसभा लड़ना है तो उसे लड़ना है। किसी भी केंद्रीय मंत्री को अगर कहूंगा कि मैं महानगर पालिका का चुनाव लड़ना है तो उसे लड़ना है। एक तो ये भाजपा की नीति और नीयत है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में हर वो व्यक्ति स्वतंत्र है। भरत सिंह जैसा हर व्यक्ति, हर कांग्रेस का वो कार्यकर्ता स्वतंत्र है कि अपनी बात को वो कहता है और रखता है। तो ये बताइए कि किस पार्टी में कितना मान सम्मान किसको मिलता है। क्या मैं अपनी बात आज बैठ के कह रहा हूं, पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, यह सही है कि देश के प्रधानमंत्री एक केंद्रीय मंत्री को भेजते हैं कि आपको एक विधानसभा लड़ना है, एक सांसद को बोलते हैं कि आपको महानगर पालिका लड़ना है, और वो आवाज तक नहीं आती है, उफ तक नहीं आती है। शिवराज सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या उनमें कमियां थी भाई कि आप आज तक उनका नाम जो है वो डिक्लेयर नहीं किए? क्या कमियां थी आप बताइए। रमन सिंह में जो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या वो फ्लॉप है? तो आपको देश के सामने आके ये कहना चाहिए कि हाँ, ये मुख्यमंत्री जो थे ये काम नहीं किए, ये फ्लॉप है। आपको देश के सामने आके बताना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया हमारे लिए जो है वो काम की नहीं रह गई है, इसलिए हम उनका नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। या तो फिर आपसे डर है, आपका खौफ है, या तो फिर आप इनको जो है दरकिनार कर दिए। ये देश को बताना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता गाहे बगाहे मीडिया में बात उठती है और बताते हैं कि देखिए कांग्रेस का उस नेता ने इस तरह से कहा, कांग्रेस की ये नेता नाराज हो गया है। तो नाराज तो कम से कम अपने परिवार में हुआ करता है ना। तो हम जब नाराज भी होते हैं अपने परिवार में होते हैं, अपनी बात अपने परिवार में रखते हैं। लेकिन ये भाजपा में संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए जो है महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। चाणक्य कहे जाते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, कहते हैं कि पूरी जो है सरकार उनके इशारे पे चल रही है और खुद जो है उप मुख्यमंत्री के पद से जो है वो संतोष करना पड़ रहा है। अरे जो इतना मजबूत होता है, अगर वो मजबूर नहीं है, मजबूत है, तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? क्यों? क्योंकि दिल्ली का हाई कमान जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अगर इनके खिलाफ आप बात करोगे तो आप शायद कल डीसीएम भी नहीं रहोगे। तो ये एक तरफ दिखाता है कांग्रेस पार्टी में किस तरह से आजादी है बोलने की और किस तरह से भाजपा में आजादी नहीं, तानाशाही है वहां पे दबाने की। और यहाँ तो ये भी हुआ था, आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े अच्छे मित्र देवेंद्र फडणवीस साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी साहब। उन्होंने तो ये कहा था कि एकनाथ शिंदे साहब की सरकार को हम बाहर से समर्थन देंगे। उसके बाद जेपी नड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि हमने उनको हुक्म दिया है कि वो डेप्यूटी सीएम बनेंगे अंडर एकनाथ शिंदे। क्वाइट ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन ये बताएं सर, आपके
सवाल में ही जवाब मिला है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जी इतने नाराज थे, कोप भवन में नागपुर में बैठे हुए थे, बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, और उन्होंने शायद मीडिया के सामने जब आके ये कहा कि मैं तो सरकार को बाहर से समर्थन देना चाहता हूं, तब तक तो नड्डा जी को तो छोड़िए, नड्डा जी दिखता कुछ और है सर। नड्डा जी क्या है, नड्डा जी के पास धक्का मार के उनको बगल कर दिया जाता है। मोदी जी चलते हैं तो अमित शाह जी चलते हैं तो उनको ऐसे धक्का मार दिया जाता है। विजुअल तो पूरे देश ने देखा है। चलो साइड में चलो, फोटो के बीच में आप कहाँ आ रहे हो, अब आप जो है अध्यक्ष हो गए। और एक ये भी दिखाता है कांग्रेस पार्टी में कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं ना कि सर्वे सर्वा राहुल गांधी जी है, सारी मीडिया ये कहती है, वो राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष खड़गे जी को पानी का बोतल खोलते हुए ना उनको देते हैं। और ये दिखाता है एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत और एक मान सम्मान दिखाता है, एक बड़े आदर के साथ एक बड़े नेता के लिए किस तरह से राहुल गांधी जी सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। और लेकिन भरत सिंह जी इन्हीं राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी ने तो रावण बना दिया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि राहुल गांधी जी रावण हैं कि पप्पू हैं। मतलब अगर पप्पू हैं तो रावण नहीं हो सकते, और अगर रावण हैं और अगर पप्पू है तो रावण कैसे हो गए? और इतना पैसा खर्चा कर दिया पप्पू बनाने में, अब और पैसा खर्चा रावण बनाने में, ये क्या है? हजारों करोड़ पहले तो खर्चा किया पप्पू बनाने में जी। हजारों करोड़ खर्चा करने के बाद जब पप्पू से पापा बन गए तब ये लोग बौखलाए। अब ये सोच रहे हैं कि इनको रावण बना दिया जाए। तो देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। वो जानती है कि 4000 से ज्यादा किलोमीटर तक पदयात्रा कौन किया। वो जानती है कि खड़गे जैसे अध्यक्ष, हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनका मान सम्मान किस तरह से किया जाता है। एक माँ को दिखाया है कि किस तरह से एक माँ को मान सम्मान दिया जाता है, माँ को किस तरह से पकड़ के ले जाके मंच तक छोड़ा जाता है या बिठाया जाता है। वो भी देश की जनता ने देखा है। देश की जनता ने ये भी देखा है कि एक बड़ा नेता, देश के प्रधानमंत्री जैसे ओहदे पे बैठा हुआ नेता अपनी माँ को जो है नोट बदलने के लिए लाइन में लगाता है। तो ये विजुअल दिखाता है कि कौन कितना मान सम्मान किसके लिए करता है। तो पप्पू बनाओ या रावण बनाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पप्पू अब पापा बन चुका है। और पापा बन के जब वो आए हैं तो नए फ्लेवर के साथ आए हैं राहुल गांधी जी, और ये दिख रहा है। और यही हताशा पिछले 4 दिनों से वो दिख रही है देश में। हर जगह ईडी और सीबीआई की छापेमारी शुरू है, चाहे वो देश का चौथा स्तंभ हो, चाहे वो विपक्ष की कोई भी नेता हो। ये क्या है ये भरत सिंह जी, ये मुझे बताइए कि ये बौखलाहट क्यों हो गई? अभी वो न्यूज क्लिक के बेचारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको उठा उठा के अंदर डाल दिया। अब वो कहते हैं कि यार मतलब आई एम सो सॉरी कि मैं जरा डाइवर्ट कर रहा हूं सब्जेक्ट से, भरत सिंह साहब। अब वो जो बेचारा न्यूज क्लिक का जो सीईओ है वो कहता है कि यार हमारे पास तो पूरी परमिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पूरी परमिशन दी है हमको। और ये वही एंटिटीज हैं जिन्होंने, जो कांग्रेस के फेवरेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं गौतम अडानी साहब, उनके यहाँ भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है और थोड़े बहुत पैसे उन्होंने हमको भी दिए हैं। तो ये क्या है, मतलब क्या हो गया है ये? कैसा है कि राजीव जी, आज आपका जो चैनल है नेशन नाउ, बहुत लोग देख रहे हैं और आप सच्चाई बता रहे हैं। जो सच्चाई गोदी मीडिया, देश की जो गोदी मीडिया है, जो बड़े चैनल, कॉर्पोरेट हाउस जो दिखा नहीं पा रहे हैं, डर के मारे बता नहीं पा रहे हैं, वो आप जैसे लोग जो है वो दिखाना चालू कर दिए हैं, वो बताना चालू कर दिए। और व्यूअर्स मतलब ये समझिए वो लाखों में जा रहे हैं। तो जो बड़ी मीडिया है वो तो 1000 में नहीं पहुंच पा रही है। देखना नहीं चाहते हैं लोग टीवी के चैनल को आज खोल के, वो सोशल मीडिया को देखना चाहते हैं, वो नेशन नाउ को देखना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक के लोगों को जो है उनकी बातें सुनना चाहते हैं। तो ये बौखलाहट कहीं ना कहीं दिख रहा है सरकार को। ये डर सता रहा है कि हमारा पोल अगर कोई खोल सकता है तो वो नेशन नाउ जैसा चैनल खोल सकता है। वो जो है जो क्लिक मीडिया वो जो बताए है, वो जो है ना, ये लोग दिखा रहे हैं, ये लोग खोल रहे हैं। तो किस तरह से इनको दबाया जाए, किस तरह से डराया धमकाया जाए, यही चालू है। और यूएपीए सर, भरत सिंह जी, यूएपीए यार, यूएपीए के अंदर उसको अरेस्ट किया बेचारे को, मतलब वो तो एंटी टेररिस्ट लॉ है सर।
वो तो एंटी टेररिस्ट लॉ है जिसके तहत उसको अरेस्ट किया गया है कि जर्नलिस्ट टेररिस्ट हो गया। देखिए, आज अगर आप या मैं कोई भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज खोला, उसके लिए ऊपा यूपी ये जो लगाया जा रहा है वो लगाया जाएगा। कम से कम तो इतना तो बनता है ना भाई, वो सरकार में है। आप थोड़ा उनको दे दीजिए, छूट दे दीजिए कि आप लोग कुछ भी करिए, हम आपके साथ हैं, आप हमको जहां भी डालना चाहते हैं डाल लीजिए। देखिए, यही भाजपा के लोग आके आपके चैनल पे शायद बैठ के ना चिल्लाते होंगे। आपको पता होगा 1975 में इमरजेंसी किसने लगाया था? आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? सबको अंदर कर दिया था। वो तो उन्होंने बोल के किया था। आप तो बिना बोले ही सरकार, रात को, सुबह, शाम, पता नहीं, आप दरवाजा खोले, कल पता चला राजीव भाई आप दरवाजा घर का खोल रहे हैं सुबह, ये अखबार वाले आए हैं और पता चला कि वहां पे ईडी वाले खड़े हैं, सीबीआई वाले खड़े हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। नहीं, हो चुका है, सब हो चुका है। तो मैं बता रहा हूँ, वो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी है तो कुछ भी मुमकिन है। अब आप बताइए, संजय जी के घर पे जाते हैं, छापेमारी करते हैं, उनको एक दमड़ी, एक नया पैसा नहीं मिलता है और उसके बाद में बोलते हैं चलो जेल में लेके। अरे 1200 रुपए मिले उसके घर से यार, 1250 रुपए मिले उसके घर से। 1250 रुपया, अब उनको हिसाब देना पड़ेगा ना। 1250 रुपया, बाप रे बाप, एक मंत्री के घर पे 1250 कैसे मिला? भरत सिंह जी, मगर अभी मोदी साहब ने अपने स्पीचेस में खुद कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो कहा था, बोले मोदी जी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज बिलोंग्स टू माइनॉरिटीज, और उनका माइनॉरिटीज का हक है और उस माइनॉरिटीज के अंदर पहले मुसलमान का हक है। ये मोदी साहब का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बोला। क्या यही होने वाला है? मोदी साहब आगे जाकर कहता है कि पर मैं कहता हूं पहला हक हमारे इस देश के गरीबों का है और मैं उनके लिए दिन रात काम कर रहा हूं। तो क्या ये एजेंडा सेट है? क्या ये एजेंडा सेट है भरत सिंह जी कि ये रास्ता बीजेपी अपनाने वाले हैं आने वाले 5 प्रदेश चुनाव में और 2024 इलेक्शन में? यही होगा भरत सिंह जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जो इंटरनली सर्वे करवाया अपना, वो सर्वे में हर जगह बीजेपी मात खाते हुए दिख रही है और जो गोदी मीडिया है उसको दबाव में रहते हुए भी ये दिखा रही है कि कांटे की टक्कर, कहीं कांग्रेस आगे है तो कहीं भाजपा आगे, वो कांटे की टक्कर दिखा रही है। लेकिन हकीकत असलियत ये है कि भाजपा ने जब अपना आंतरिक सर्वे करवाया, उस सर्वे में 5 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है भाजपा का डर। अब आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जो है गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। हाँ, इस देश में कुछ गरीब हैं, मैं भी इसको स्वीकार करता हूं, मानता हूं कि अदानी जैसे गरीब लोग हैं, अदानी, अंबानी, ये सब जो है वो गरीब लोग हैं। तो इनके लिए देश के प्रधानमंत्री को तो काम करना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि जो है 18-18, 20-20 घंटे बताते हैं इनके नेता कि हमारे मोदी जी जो 18-20 घंटा काम करते हैं। ये तो कोई अच्छा हुआ कि अभी चैनल पे हो सकता है कुछ दिन के बाद में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, बोले 24 घंटा देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये मैं मानता हूं कि हाँ, देश के कुछ गिने चुने जो गरीब है उनके लिए देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। जी भरत सिंह जी, अभी बीजेपी हाईटेक कैंपेन चालू कर दिया। हाईटेक कैंपेन यानी एक ऐप निकाला है भूपे यानी भूपेश बघेल जी के स्कैम। आप क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दो तो तुरंत जितने भूपेश बघेल जी के स्कैम है जो उन्होंने किया है वो पूरा उजागर होगा। और दूसरे जैसे बजाज साहब आपसे बोला कि जैसे रावण, न्यू एज रावण, जैसे जो धर्म विरोधी है, राहुल गांधी जी धर्म विरोधी है, आप पिक्चर निकालो पूरा आ जाएंगे किस प्रकार से राहुल गांधी जी को रावण के पूरे वस्त्र और पूरे चीज में राहुल गांधी जी को दिखाया, जो राम के खिलाफ है, जो धर्म के खिलाफ है, जो अन्याय के साथ देने वाला और इस देश को, भारत को डिस्ट्रॉय करने वाला। तो ये हाईटेक कैंपेन चालू कर दिया है कांग्रेस को कि ये परिवारवाद वाले कैंपेन है, ये परिवारवाद के दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, भ्रष्टाचार के दुकान है। भरत सिंह जी, देखिए नामबिहार भाई, नकली पार्टी और नकली पार्टी हमेशा नकल ही करती है।
हमने जो है कर्नाटक के चुनाव में वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ, जब भी आपने कहा कि भू पे, तो हमने भी 40% का पे कमीशन वहां पे दिया था वहां के जो मुख्यमंत्री थे, तो उसी का एक नकल इन्होंने किया है। लेकिन नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है, तो शायद भाजपा को वो अकल नहीं आया कि भूपेश बघेल जी के खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसा FIR नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है, कोई ऐसा वहां पे जो है कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिला ये जो कहे कि भैया हम 40% 50% कमीशन देते हैं। तो वो जो है फ्रस्ट्रेशन भाजपा का ये दिखा रहा है, क्योंकि सारे सर्वे में ये जाहिर हो गया है कि फिर से भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में 65 से जो है 70 सीटों से जो है वो सरकार बना रहे हैं। तो भाजपा अपनी आखिरी कोशिश कर रही है, जो डिजिटल कह रहे हैं कि आप ऐप लाई है या डिजिटल जिस तरह से प्रमोशन कर रही है, ये तो पहले शुरुआत से 2014 से ही शुरू है ना। उसमें क्या है, करोड़ों रुपया तो पहले खर्चा किया पप्पू बनाने के लिए, क्या क्या करने के लिए, लेकिन ये सब में फेल हो रहे हैं। आप जब काम करेंगे जनता उस काम को देखती है। आप देखिए जो है राजस्थान में किस तरह से 500 में गैस मिल रहा है महिलाओं को, वहां पे जो है हर महीने जो है एक सरकार की तरफ से कैश दिया जा रहा है, किस तरह से जो है 100 यूनिट बिजली जो है घर में फ्री कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो मध्य प्रदेश में भी आ रही है, वो जो है छत्तीसगढ़ में आ रही है, और तीनों सर्वे में कहीं ना कहीं भाजपा हार रही है। तेलंगाना का कल सर्वे आया, शायद राजीव जी आपको पता है कि नहीं, तेलंगाना का जो सर्वे आया उस सर्वे में हम जो है करीब 67 से 70 सीट हम जीत रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि 4 राज्यों में, मैं पहले भी कहा था कि हम 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं और 4 राज्यों में सरकार बनाएंगे। तेलंगाना, आई होप द फिगर्स आर राइट, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज BRS is a very fearsome and formidable foe. Let's be very clear, KCR will be very difficult to defeat. लेकिन वहां पर सीधी साधी बात है, आपकी सीधी टक्कर BRS से, उसमें कोई दो राय नहीं है, और हो सकता है कि कांग्रेस जीत जाए वहां पे। लेकिन राजस्थान में सर, फॉर मी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, और मैं मतलब बड़े दिल से कह रहा हूं ये बात, कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट साहब जिस तरीके से वहां पे काम कर रहे हैं, भले ही लोग बोल रहे हो कि उनके आपस में असमंजस है, ये एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू, दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर जस्ट लाइक DK शिव कुमार एंड सिद्धरामैया वर्कड इन कर्नाटका। मुझे ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत जी शायद वो पूरा राजस्थान का पैटर्न खत्म कर दें, तोड़ दें, और कंसेक्यूटिवली दोबारा जीत जाए, लग ऐसा रहा है मुझको। और अगर वो हो गया तो मिरेकल होगा साहब। भरत सिंह जी, मेरा जो सर्वे है उस सर्वे के हिसाब से हम 128 सीट आए। शाबाश, जबरदस्त, फैंटास्टिक। ये मेरा आज ये दिन नोट कर लीजिए, फिर हम बैठेंगे जब वहां पर चुनाव हो जाएगा। 128 सीट हम ला रहे हैं, और जिस तरह से कह रहे हैं कि सचिन पायलट और जिस तरह से अशोक गहलोत जी में नहीं जम रहा है, अनबन है, ये सारे सिकवे गिले धरे के धरे रह जाएंगे। जो हम जनता के लिए वहां काम कर रहे हैं, जो जादूगरी अशोक गहलोत जी ने दिखाई है, 25 लाख रुपए का, समझिए अगर आप बीमार होते हैं तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद 25 लाख रुपए तक के जो है पैसे को माफ कर दिया है, कोई भरना ही नहीं है आपको। उस राज्य की जनता किसको वोट देगी? उस राज्य की जनता किसको वोट देगी जहां पे 500 रुपए में गैस जिसको मिलता होगा? वो बहनें किसको वोट देंगी जिनको हर महीने में जो है घर में पैसा आता हो? वो जो छात्र, जो नए जनरेशन कहते हैं ना, न्यू जनरेशन, जो फ्लोटर वोट जिसे कहते हैं, जो आज जो ग्रेजुएट होके भी आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, अगर उसके अकाउंट में महीने का 3000-2000 रुपया आ रहा है तो वो किसको जाके वोट देगा? ये सारी चीजें। और उसके बाद में किसानों के लिए करीब मुझे लगता है 1 से 1000 यूनिट जो है बिजली फ्री कर दिया गया। घर में जो है आप अगर घर में यूज कर रहे हैं तो 100 यूनिट वहां पे फ्री कर दिया गया है। सवाल यह है कि राज्य की जनता को, राजस्थान की जनता को किस तरह से सहूलियत मिले, किस तरह से इस महंगाई में उनको निजात दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो अशोक गहलोत जी और वहां की जनता से मैं भी 1-2 वहां पे जाके आया हूं, और जो पूरे राजस्थान को घूम के मैंने देखा, मेरा अपना सर्वे ये कहता है कि हम जो है करीब 128 सीट लेके आ रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया, जो आपका कर्नाटका मॉडल है वो हर जगह पे काम करेगा, अब लगे सर आए। और छत्तीसगढ़ में भी जिस प्रकार बघेल साहब ने काम किया है, जिस प्रकार एक वेलफेयर स्टेट कैसे होता है, जबरदस्त है जी। 70 सीट हमारे,
जी, हम but that will be 70 fantastic. सितारे- But the only thing is as far as मध्य प्रदेश is concerned, मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास मतलब जबरदस्त मौका है, वेरी फ्रैंकली। वहां पे तो शायद क्लीन स्वीप भी हो सकती है, हो सकता है। मध्य प्रदेश की चार स्टेट। नहीं प्रदीप जी, आई एम टेलिंग यू समथिंग एल्स। क्या था पिछली बार वो 20 लोग इस तरफ आ गए, 25 लोग इस तरफ आ गए, इसकी वजह से सरकार गिर गई। इस बार अगर 50-60 लोग भी चले जाएं तो सरकार शायद नहीं गिरेगी। भरत सिंह जी। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। देखिए क्या है ना कि मध्य प्रदेश की जनता ये पूरा देखी पिछले 5 साल में कि सरकार किसकी थी। सरकार को तो कांग्रेस ने बनाई थी जी, उसको तोड़ के जोड़ के चुरा के एमएलए को आपने जो है सरकार बनाई। उसके बाद में भी सरकार बनाने के बाद जो सरकार को चला रहा था, जो मालिक था, उस मालिक को ही आपने दरकिनार कर दिया, साइड लगा दिया, किनारे लगा दिया। तो क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी पूरी तन मन से काम करेंगे? आपको लगता है? आपको क्या लगता है कि आज जो है वहां पे जो है नरोत्तम मिश्रा जी जो अपने आप को दावेदार कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, बनूंगा, क्या आप उस कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान सुने? कह रहे मैं तो बड़ा नेता हूं, मैं तो सोच रहा था कि 5-5 6-6 जगहों पे जाके मैं प्रचार करूं और मुझे जो एक विधानसभा में लड़ाया जा रहा है, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री के लिए पेश कर रहे थे दावेदारी। अब जो केंद्रीय मंत्री आए हैं कुछ, उसमें से 1-2 लोग तो ये सोच रहे हैं कि चलिए ठीक है मैं तो चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो ये मुख्यमंत्री का जो लड्डू है ना, ये भाजपा ने इतना अटका दिया है कि वो सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो शिवराज सिंह सोच रहे हैं कि 15 साल क्या मैंने झक मराया था इस प्रदेश के लिए। ठीक है, जो वसुंधरा राजे जी ने राजस्थान में किया था वही काम जो है मैं यहाँ पे करूंगा। जितने भी देखिएगा, सबसे बड़ा अगर डैमेज कोई कर रहा है इनको और करेगा आगे चल के, ये पिछले जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तो उसमें मुझे लगता है कि जो वहां के मामा है शिवराज सिंह चौहान जी, मामा नाराज हो गए हैं। तो मतलब मामा का मतलब कंस मामा, शकुनी मामा ये रोल प्ले हो रहा है। नहीं, मैं भाजपा की जो जिस तरह से उनका अपना एक काम करने का और बोलने का और दिखाने का तरीका है, रावण या मामा, मैं उसने ही कहूंगा। मामा जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड है, रिस्पेक्टेड वर्ड है। तो मैं ये समझता हूं कि उस मामा को जो हिसाब से, जिस हिसाब से बेइज्जती की गई है, जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने उनका जो है एक मान मर्दन किया है, वो कहीं ना कहीं देखिएगा वहां की उनका नाम भी नहीं लेते सर, भाषण में उनका नाम भी नहीं लेते। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब कहते हैं ना कि भाजपा वो भस्मासुर पार्टी है कि ये तो दूसरे को तो निगलती है, अपनों को भी नहीं छोड़ती है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको दोनों ने ठगा नहीं, भाजपा नहीं, ये 2 लोग। भरत सिंह जी, आप राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 2024 के इमीडिएट आने के बाद मैं जातीय जनगणना टॉप प्रायोरिटी में इंप्लीमेंट करूंगा। जातीय जनगणना, बिहार के इंस्पिरेशन, बिहार जो कास्ट सेंसस हुआ है उसके बाद 84% आपने देखा ओबीसी, एक्सट्रीमली ओबीसी और एससी एसटी सब मिलके 84% है। तो यह है कि आपने क्लियर स्पष्ट कर दिया कि जातीय जनगणना जरूरी है। और राहुल गांधी जी ने जैसे कहा 90 में से सिर्फ 3 लोग हैं और एम्पावरमेंट ऑफ ओबीसी एब्सोल्युटली एसेंशियल है। मगर बीजेपी का कहना, बीजेपी कह रहे हैं कि 17 प्राइम मिनिस्टर इस देश में था, 75 इयर्स में करीबन 60 साल कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस ने एक भी ओबीसी प्रधानमंत्री कभी एम्पावरमेंट के तरीके से भी नहीं रखा। बोले सिर्फ 2 ओबीसी थे, एक देवगौड़ा और दूसरे अभी नरेंद्र मोदी जी। बोले आप सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं। आप जैसे नारी शक्ति अधिनियम में 27 साल से बोलते रहे, कुछ किए नहीं, मोदी साहब ने 2 दिन में किए। और ओबीसी के भी आप बहुत अभी बात कर रहे हो, इंप्लीमेंट करेंगे, जरूरी है, एम्पावरमेंट जरूरी है, ये सिर्फ बातें हैं, आप नहीं करेंगे। ये सिद्ध हो गया कि 60 साल में आपने एक भी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। भरत सिंह जी, बीजेपी का आरोप। देखिए बीजेपी को मैं इतना ही कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में इंडिया टीम मिलके लिखेगी नई कहानी। तो जो हमारा अलायंस बना है, टीम इंडिया गठबंधन बना है, उसके चेहरे अगर आप देखेंगे तो एक से एक चेहरे दिखेंगे। वो चेहरे नहीं दिखेंगे कि
जिस तरह से 38 लोगों को लेके एनडीए बनी है, जो एनडीए 38 जनों का अगर आप देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि 4 घर छोड़ के 5वां घर की भी ये नहीं पता होगा कि इनकी खुद की पार्टी है। वो जो है वो एनडीए में है, और इंडिया में तो वो दिखेंगे चेहरे कि जो खुद मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, मुझे लगता है कि मिनिस्टर भी रह चुके। बड़ी एक पार्टी, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ले लीजिए, चाहे वो शरद पवार जी को ले लीजिए, चाहे वो ममता बनर्जी को ले लीजिए, अखिलेश यादव को ले लीजिए, चाहे वो आप जो है लालू प्रसाद यादव जी को ले लीजिए, चाहे वो नीतीश कुमार को ले लीजिए, ऐसे चाहे वो साउथ में आए स्टालिन को ले लीजिए। तो आपको जितने इंडिया में दिखेंगे, जो इंडिया के चेहरे दिखेंगे, वो देश की जनता जानती है। लेकिन आप एनडीए को देखेंगे ना, तो एनडीए मुझे लगता है कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने फॉर्म वॉर्म जल्दी जल्दी भरवा के ना 2-4 लोगों का पार्टी बनवा दिया होगा कि हमारी जो है देखिए मेजोरिटी इतनी हो गई है। तो एक भरत सिंह जी चलते चलते एक छोटा सवाल नहीं है, एक्चुअली बड़ा गंभीर सवाल है। जिस प्रकार सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अभी संजय सिंह जी को अरेस्ट किया गया, और उसी दिन जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में बार बार पूछा गवर्नमेंट एजेंसी से कि भाई सबूत तो दिखाओ, आपने जो अरेस्ट किया हुआ है मनीष सिसोदिया को, सबूत क्या है यार, सबूत तो लेके आओ। अब बात यह चल रही है कि हो सकता है कि काफी और राजनेताओं को भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है? देखिए राजीव जी, शायद आपको पता है कि नहीं है, जब इंडिया की यहाँ पे बैठक हुई, बैठक के बाद हमारी जो है कार्यालय में राहुल जी का एक स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें खड़गे जी भी थे, हमारे अध्यक्ष। तो खड़गे जी ने उस दिन मंच से ये कहा था, सारी मीडिया भी मुझे लगता है उसको दिखाई दिया कि नहीं, कि देखिए सब विपक्ष के सभी दल ये तैयार रहे, कभी भी किसी को भी जेल जाना पड़ सकता है, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, हम सब तैयार हैं कि जब आपको मन हो, जब आपकी इच्छा हो, जब आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे जो है भरत सिंह को जेल में डालना चाहिए, तो आप डाल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और हम इससे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उस पार्टी से आते हैं जो गांधीवाद को मानता है, जो गांधी के विचारों पे चलता है। हम उस पार्टी से नहीं आते हैं जो गोडसे के नाम, जो गोडसे को मानता है, गोडसे की पूजा करता है, और गोडसे की पिक्चर जब आती है तो उसको दिखाने के लिए जो है भाजपा का सांसद उसका उद्घाटन करता है। आई किल्ड बापू का उद्घाटन अगर किसी ने किया तो महाराष्ट्र और मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी जी ने किया। मैंने इसका जो है कंप्लेंट भी किया है पुलिस स्टेशन में, हमारे स्थानिक पुलिस स्टेशन विले पार्ले में, और मैंने मांग किया है कि आई किल्ड बापू जिसने ये उसमें महिमा मंडल जो है वो गोडसे का दिखाया गया है, तो क्या इस देश में अब जो है गोडसे जैसे व्यक्ति को महिमा मंडल किया जाएगा, वो जो है हीरो बनेगा और बापू जो है विलन बनेंगे? तो हम उस पार्टी से आते हैं जहां पे गांधी जी को पूजा जाता है, गांधी जी को माना जाता है। हम उस पार्टी से नहीं आते हैं जहां पे गोडसे का पूजा किया जाता है। राइट, थैंक यू सो मच सर। भरत सिंह जी, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आता है सर आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद सर, जय हिंद भरत सिंह। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद। Well, the BJP does have its work cut out. I mean, in terms of what's happening in Madhya Pradesh. I don't know what's happening in Madhya Pradesh, very frankly speaking. Why do you think Shivraj Singh Chauhan's name has been kept out of the list for such a long time? I'm sure they're going to... BJP is silent on that, but BJP's aggressive campaign is that we are doing so much for the tribals, we are doing so much for the OBCs, we are doing some of the backward communities. जो जंगल है, you know, all the slogans coming that protect the jungle, Vanvasi, ये जितने हैं, they are working in roads, but then Madhya Pradesh seems to be a safe bet usually for the BJP. So, and this time it's a safe bet for the Congress. Just like they won last time. कांटे की टक्कर। नहीं, कांटे की टक्कर नहीं है साहब इस बार। I think it will be either way. In my personal opinion, the Congress will win, but whosoever wins will be by a huge majority. That's what I think. Now, at the moment with us, our very old friend, joining us after a long time, Mr. RUBEN Mascarenas of the Aam Aadmi Party. How do you do, RUBEN? I'm all good, sir. How are you, sir? Namaskar. Nice to be on your show after a long time. After a long hiatus, and you had gone abroad also and stuff like that. But today, so the cops turned up at your house.
the police turned up at your house and told you you can't go out because we will not let you demonstrate against the arrest of Sanjay Singh. Is that correct, Ruben? No, RKB, I mean, it was a very comic situation because the cops arrived very early at 7:30 a.m. and Wow. they sort of sealed the access to the colony. And just for one person, just for me, there were 2 vans and there was 1 jeep and there were 6 or 7 officers. Oh wow! And as soon as I opened the door, they were recording me, and I was like, okay, what the hell is going on? So first they said that, okay, you need to sign some document. When I went down, they didn't have any notice. I tried to tell them that, hey, I'm a lawyer, so please show me your notice. I'm happy to cooperate. And then, the senior PI reaches out to me and says that, hey, there's a lot of pressure on us and we need to essentially be seen to be acting. So this is a preventive detention of sorts. And I told him कि देखिए कुछ आप केवल चंद 20-25 जो सीनियर लीडरशिप को अगर आप प्रिवेंटिवली डिटेन करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटेस्ट नहीं होगा. प्रोटेस्ट तो होगा. आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हैं और बढ़ चढ़ के हमारा प्रोटेस्ट हुआ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. लेकिन आरकेबी आप मुझे जानते हैं जब सिंस आई वाज लाइक 17 और 18 लाइक क्वाइट लिटरली. और उसने मतलब आज तक मैं पब्लिक लाइफ में इतने साल हो गए, कभी ऐसा हमारी मुंबई पुलिस ने बिल्कुल नहीं किया. हम हमेशा पुलिस को बताते थे कि देखिए हम ऐसे कर रहे हैं. पुलिस हमको बताती थी ठीक है ऐसे मत करके ऐसे करो. दे वुड ऑलवेज बी वेरी कोऑपरेटिव. आज तक कभी हमने ना तो पुलिस का के आदेशों का कभी उल्लंघन किया है, ना तो कभी हमने जो है कानून सख्ती से तोड़ा है. मे बी जमाबंदी का थोड़ा आदेश था तो जस्ट बेसिक जो जमाबंदी तोड़ने के जो सेक्शंस हैं वो लगाए जाते थे. बट आई थिंक ये पहली बार हुआ है आरकेबी की मुंबई पुलिस ने और मुझे दुख इस बात का है कि मुंबई पुलिस हमारी पुलिस है. इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय पूरा उनका कोऑपरेशन था और वो जानते हैं कि हम ठीक लोग हैं. पुलिस भी ऑफ द रिकॉर्ड कहती है कि लिसन वी नो यू आर क्लीन पीपल बट वी नीड टू बी सीन टू एक्ट. तो ये प्रेशर ये कहाँ से आ रहा है प्रेशर? क्या फडणवीस जी जो राज्य के गृह मंत्री हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं या क्या मोटा भाई दिल्ली से कुछ प्रेशर डाल रहे हैं? तो ये क्या प्रेशर है? क्योंकि ये केवल मुंबई में नहीं, ये दिल्ली में भी हुआ और ये आश्चर्य की बात है क्योंकि विरोध प्रदर्शन करना हमारा हक है, हमारा अधिकार है और सरकार का ये दायित्व है कि वो इसे हमें हमारा जो विरोध करने का जो हक है उसे एनेबल करें. सो आई डोंट सी कि ये कब से ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमारी इंडियन स्टेट कब से इतनी कमजोर हो गई है जब से मोदी जी सत्ता में है कि हर कुछ इज सीन एज सम थ्रेट टू द कंट्री एंड एंटी इंडिया और इतनी साजिश और मतलब पता नहीं क्या कहां से मन घड़ंत. You should feel flattered, Ruben. They thought you were Che Guevara, Wow, rocking. 2 vans, so many cops, the entire colony being barricaded. Wonderful, really wonderful, fantastic. You arrived, but but jokes apart, सबसे बड़ी वाहियात बात क्या है कि आज की तारीख में मनीष सिसोदिया has been in jail for such a long time. मतलब 6 महीने से ऊपर हो गए मनीष जी has been in jail. उसके अलावा संजय सिंह जी को उठा करके ले गए. संजय सिंह जी के घर से कुछ मिला नहीं. मतलब ये क्या हो क्या रहा है यार? ये मेरी समझ के बाहर है. क्या ये भारत देश है क्या? व्हाट इज गोइंग ऑन? I mean, if they are guilty, do be kind enough to punish them, hang them by all means. But as Justice Khanna asked in the Supreme Court, where's the proof, sir? No, absolutely, sir. If you see, there have been 1,000+ raids on anyone and everyone who, according to the ED, is related to this so-called scam. But they have not found an iota of evidence. They have not found a shred of money trail or anything else for that matter. And in this, the process is the punishment, right? You see that the bail was denied by the lower court. It was then appealed in the high court. It was denied in the high court. And now the bail plea is now being heard in the Supreme Court. And just look at the extent to which the BJP can just compromise, central agencies like the ED, like the CBI to just go after the opposition just because ये मोदी जी की बौखलाहट है कि
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को भाजपा पॉलिटिकली मैनेज नहीं कर सकती है, इसीलिए हमको चुनाव में वो हरा नहीं सकते हैं, इसीलिए उनको कैसे भी करके ये मनगढ़ंत कहानियां बना के उनको हमारे लीडरशिप को जेल में रखना है। मनीष सिसोदिया जी देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली में एक क्रांति का शुरुआत किया है, और यही शिक्षा की क्रांति भाजपा को पच नहीं रही है, क्योंकि ये कभी कोई दूसरे स्टेट में हम सुनते नहीं है कि अरे हमने राजस्थान में या हमने एमपी में या हमने गुजरात में हमने स्कूल ठीक बना दिए और आपके दिल्ली की तुलना में यहाँ के स्कूल अच्छे हैं। वी डोंट हियर एनी ऑफ दोस कंपैरिजन। That is because the BJP can just create some emotional issue and just polarize people and use hate and use the politics of othering to basically win an election. But the BJP doesn't know what to do when people contest elections on public service delivery, on shiksha, right, on pani, right, on bijli. So in effect, before Pradeep ji comes in, because he has a lot of questions for you, in effect, the idea is to create terror. The idea is to create fear that, hey, listen, if we can do this to these guys, imagine what we'll do to you. Is that right, Ruben? Absolutely. I mean, I'm a lawyer. I just passed my law last month. I'm an engineer primarily. And what a joke this entire process has been reduced to. You have bail, which is essentially what is supposed to be the norm, and jail is essentially the exception. But in this case, there's just a trumped-up charge. There's just some approver being brought there. Then you have Sanjay being arrested. Now they will argue that, we found something in Sanjay, and then that will prove something else. But nothing's been proven. I mean, nothing's even come to a trial stage. What the hell is going on? You initially said what Mr. Kejriwal ji said. Kejriwal ji kaha ki 15 months, 1,000 raids, not a rupee has been recovered. That's what Kejriwal said. Kejriwal ji aage kehta hai ki 33 cases have been filed against me continuously, but not a shred of evidence against me. This has been continuing. Rahul Gandhi ji, one of your Gatak Dal kehta hai ki opposition is being targeted, and you have listed the opposition being targeted. On Delhi, on second, it started on second, Andhra Pradesh and Telangana, 60 raids, around 60 locations NIA raided. On third, 46 journalists were questioned, most of them arrested. Special squad when news click was considered. Enforcement Directorate on 4th arrest Sanjay Singh. On 5th, IT department raids around 40 locations where DMK MP Jagat Rakshanan was there. So now this entire thing is suddenly a spurt of raids where opposition leaders are concerned and men of repute who could damage the reputation of BJP or Mr. Modi is being targeted. Is that happening, Mr. Mascarenhas? Absolutely. कि ये कभी भ्रष्टाचार के बारे में था ही नहीं. अगर आज संजय सिंह जी बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं या मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं, तो बीजेपी की सो कॉल्ड बहती गंगा में, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब धुल जाएंगे, सब आरोप धुल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा. अजीत पवार के बारे में देखो, अजीत पवार के बारे में खुद हमारे आज के जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी, और हमें पता है क्योंकि ये 2011 के बाद जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हमने इरिगेशन स्कैम का एक्सपोजे किया था, तभी जोरों शोरों से देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारे ही डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके ये आरोप लगाए थे कि 70,000 करोड़ का ये सिंचन घोटाला है, इरिगेशन स्कैम है. उसके खिलाफ फिर क्योंकि तभी ये एमवीए की सरकार थी, तो तभी उन्होंने जो है ये शुरू किया उनका पूछताछ. और अभी वो जो अभी तत्कालीन शिंदे सरकार और भाजपा बीजेपी के महाराष्ट्र सरकार में, क्योंकि ये घटक दल है, उनके ऊपर कोई देयर इज नो ईडी, देयर इज नो फॉलो अप, देयर इज नथिंग. ये सेटलमेंट हो गया भाई. ये बीजेपी का ये कोई भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं है, इनको कुछ पड़ी नहीं है. रूबेन साहब लेकिन कैसे ऑपोजिशन, लेकिन साहब सबसे बड़ी बात यहां पर यह बनती है कि अब चलिए ये तो रही सत्येंद्र जैन साहब की बात, मनीष सिसोदिया जी की बात, संजय सिंह जी की बात, और जहां तक आपका और प्रीति मेनन जी का सवाल है, मैं एक चीज बता दूं, जैसे हम लोगों ने आप लोगों को बताया था, वी वर द ओनली चैनल इन फैक्ट दैट कैरिड दिस ऑन एंड ऑन फॉर आवर्स टुगेदर, एंड पीपल वर आस्किंग कि क्या आप लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए. मैंने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जहां पर जो कुछ भी होता है हम लोगों को बताना पड़ता है ना.
अरे जबान को बंद थोड़ी कर सकता है, सीधी सादी बात है। प्रीति शर्मा मेनन जी और रूबेन मास्केरेना साहब के घर में पुलिस पहुंच गई ये देखने के लिए कि वो एक आंदोलन में ना जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें ना जाएं, कैंपेन में, डेमोन्स्ट्रेशन में। लेकिन अभी क्या हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भी एक कंप्लेंट दायर की गई है, एलजी साहब ने खुद दायर करी है, उनके घर को लेकर के। ये कहा गया है कि न जाने कितने पैसे खर्च दिए, घर पे करोड़ों रुपए खर्च दिए गए। सो डू यू थिंक अरविंद केजरीवाल इज ऑल्सो लाइकली टू बी अरेस्टेड? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? देखिए ये बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। इनका बस चले तो ये सारे देश के सारे विरोधी पार्टी के सारे नेताओं को अरेस्ट कर देंगे, खासकर अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक उनके लिए एक चुपता कांटा है जो हमेशा मोदी जी को आह्वान देता है, चैलेंज करता है, टिट फॉर टैट देता है डिस्कोर्स में। और वो लिटरली बीजेपी जो भी मे बी कांग्रेस को मैनेज कर सकती है, बीजेपी में भी जो भी उनका प्रोपोगेंडा है कांग्रेस के खिलाफ प्रोपोगेंडा है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को मैनेज नहीं कर सकती है। दैट इज वन। एंड सेकंड इज ये जो बीजेपी चला रही है सो कॉल्ड मुख्यमंत्री के घर का रेनोवेशन, अरे कम ऑन, गिव इट अ ब्रेक। दिल्ली डजंट हैव अ परमानेंट रेसिडेंस फॉर ऑल चीफ मिनिस्टर्स। दिस रेसिडेंस wasn't taken up for renovation for the last 5 decades. It is now being undertaken. It has a secretariat. It has accommodation for over 200 plus people. It has cabinet meetings. It has meetings for local MLAs. It has security cordons. में काफी कुछ है। मतलब ये इनको क्या लगता है, ये कोई मोदी जी की कोई प्राइवेट जेट नहीं है जहां पे वो अडानी को लेके फिरते हैं। मतलब ये थोड़ा बीजेपी should come out of this so-called and it is not Mr. Kejriwal's private residence either. दिल्ली सरकार, सुनिए जी, दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक काम करने वाली सरकार है। 5 साल पहले जब हमने पहले 5 साल वो हमें सत्ता उन्होंने सौंपा था, तब हमने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक की। यही चीज नेक्स्ट 5 years में we've taken it to the next level and people can see through it. So ये जो भी बीजेपी को कहना है बीजेपी कहे, दिल्ली की जनता, देश की जनता, पंजाब की जनता जानती है और जनता हमारे साथ है। तो ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा उनको जो करना करने दीजिए। Important thing is that we are concerned about the opposition unity. Aam Aadmi Party and the Congress has to be together if you want to take on Mr. Modi, because Mr. Modi 2024 he's increased everything by gigantic proportions. Now we are concerned when you arrested in Punjab a Congress leader, और केजरीवाल जी ने कहा कि नशे के तस्करों को हम जेल भेजेंगे, and then further केजरीवाल साहब कहा कि ये जो पहले पंजाब को करप्शन से रिलेट करता था, आज पंजाब करप्शन से रिलेट नहीं होता है हमारे आम आदमी पार्टी टेक ओवर करने के बाद। Earlier, you talk about corruption, you talk about Punjab. Punjab is synonymous for corruption. He goes on to tell further that today we have developed Punjab in such a manner, 2,80,000 MSMEs आ गया है, 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आ चुका है, we are creating more than 3 lakh jobs immediately. और पहले के सरकार, केजरीवाल जी said, पहले वाला सरकार ब्रेड बनाने वाले कंपनी से लेकर ढाबा जो चलाता था उससे हिस्सेदारी लेते था। That was केजरीवाल साहब said. Now, when you cast criticism like that, it affects the Congress. You arrested a Congress minister, you are criticizing the earlier Congress government, then bread banane wale se bhi commission le leta tha, dhabe wale se. So, how can we have Aam Aadmi Party Congress unity till 2024 to fight on Mr. Modi, Mr. Mascarenas? So, thank you so much, Pradeep ji, for your question, and you'll have to give me 2 or 3 minutes to sort of answer it, because you asked many questions in that one question. Number one, facts are facts. I'm not Vivek Agnihotri to say facts are not facts. And the fact is that the previous governments in Punjab, whether it is the Akali Dal government or the Congress government, has engaged in rampant corruption. Our unprecedented mandate is essentially a testament to the fact that people
had completely given up on both of these parties. Such was the extent of corruption, such was the extent of poor service delivery. That's point one. And whether we ally with the Congress or the Lok Sabha doesn't essentially change that fact. That's point number one. Point number two, there is a distinction between misuse of agencies to create a trumped up charge. That is one thing. And when it comes to actually going after people who've actually been part of the drug mafia, you see the case against Mr. Sukhpal Khera. It's pretty open and shut. It was watered down under political pressure. And right now, the Bhagwan Mann government is essentially going to go after all these so-called drug mafia, which is nothing but narco-terrorism, which has ruined almost 70% of Punjab's young people. And we've launched what is easily the largest rehabilitation programs of its kind in the world. Let me also draw your attention to that this financial quarter, Punjab's revenue share was higher than that of Haryana. So, ईमानदारी की सरकार is actually working on the ground and it is there for all to see. तो क्योंकि हमने एक पंजाब में उनके एक so-called drug lord MLA के खिलाफ हमने action लिया है, that is somehow being equated to misuse of agencies to put Congress in place. No, I don't think that is true. There is a distinction and we need to see that distinction. And last point and most important point, कि देखिए we have differences with the Congress. ये कोई हम ये नहीं कह रहे हैं कि just because we've allied with them suddenly all our differences have melted away. What we are saying is that आज देश के हित में, आज संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, पार्टी तो बड़ी छोटी सी चीज है, पार्टी का एक्सपेंशन छोटा सा चीज है. इंडिया alliance is basically the coming together of all the opposition to take on Narendra Modi, to take on the BJP, to defeat the politics of hate. And this is what is needed for the country and we are doing that. So that doesn't mean that our differences with the parties are over. It just means कि country बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं और लोकसभा इलेक्शन हम to the extent possible साथ में लड़ रहे हैं. तो I don't see कि इसमें क्या विरोधाभास है. But over here, but Ruben Mascarenhas, but over here, just about everybody has supported you. You take a look at Mr. Sharad Pawar. I mean, I was so pleasantly surprised to see Mr. Pawar's statement with regard to Aam Aadmi Party. He supported Mr. Kejriwal. He's condemned the fact that Mr. Sanjay Singh has been arrested, and he also said that Aam Aadmi Party is cooperating totally with the India Alliance. Mr. Nitish Kumar has said the same thing. Tejasvi Yadav has said the same thing. Mamata Banerjee has said the same thing. Stalin has said the same thing. Uddhav Thackeray, of course, says the same thing again and again. In fact, Sanjay Raut, I think, was the first of the blocks to support Sanjay Singh. Correct. And I think that's really commendable. So you think the India Alliance is coming together and will remain united till 2024? No, I don't think as an opposition we have a choice. And I think we, beyond thinking about our own party's prospects or making our own leader the Prime Minister or whatever else, we have to think about the country. We have to look at the extent in which the quality of democracy has been degraded. We need to see the extent to which socially disadvantaged groups are continuously being othered just because of the BJP's lopsided sense of history, its essential use of hate to create a sense of polarization which always affects them. Our next generations will not forgive us if we don't basically do the right thing and stand up. So I think we are together. I don't see any problems with that. But I'll say one thing. But I want to say one point. When Rahul Gandhi was disqualified on a very flimsy pretext when it came to that criticism of Modi and Modi being a community and all of that, Arvind Kejriwal had said that this is wrong. He didn't essentially support with ifs and buts, and it's a little disappointing to see the Congress support us but come up with ifs and buts. So I just hope that better sense prevails, and when it comes to standing for the right thing, you need to stand for the right thing, and that is beyond our politics. And I think Arvind did that when it came to Rahul Gandhi being disqualified, and I think when our senior leaders are being attacked, then we would expect the same reciprocation from the Congress. I hope it happens. I really hope it happens for everybody's sake. But the question that I'm asking you is this: you'll have to change your strategy a little bit, or forget change. You will have to work out a strategy as to how
all of you are going to fight elections from jail. क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत लोग अब तिहाड़ जेल में जाएंगे, अलग अलग जेलों में जाएंगे साहब, वहाँ से चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको. तो वो वर्कआउट किया है सर? इज दैट स्ट्रेटजी बीइंग वर्कड आउट? बिकॉज आई नो Mr. Arvind Kejriwal usually is about 5 to 6 steps ahead of everybody else. So has that been worked out, Ruben sir? No, of course. आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, and we are not worried to go to jail because we know we've done the right thing. We know that we've not done an ounce of corruption, and we know that the judiciary, there ही सही, the judiciary, irrespective of however compromised the institutions may seem to be, we have full faith in the judiciary, and we know that justice will prevail. That said, irrespective of whether we are in jail or not, okay, maybe इनके पास इनके ये 2.5 लोगों की पार्टी तो ये है, एक मोदी जी है, एक अमित शाह जी है, और पता नहीं आधा आरएसएस से कभी कोई लोन पे आते रहता है. तो जो ये 2.5 लोगों की पार्टी तो ये है भाई. हमारे चाहे इंडिया अलायंस का कोई भी पार्टी देख लो, हमारे पास बहुत सारे लीडर्स हैं और बहुत सारे प्रत्याशी हैं, और अगर वो सारे लोग को भी अंदर डाल दिए तो और भी लोग आ जाएंगे. तो ये कुछ केवल कुछ चंद लोग अगर चुनाव में हैं तो इससे माहौल खराब हो जाएगा और इससे जनता वोट नहीं दे देगी. देखिए आप जमीन पे, जैसे मेरे कुछ बीजेपी के दोस्त लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, जैसे दे आल्सो रीच्ड आउट टू मी सेइंग यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, और वो कहते हैं कि भाई अति हो गई है. तो आई थिंक ग्राउंड पे लोग देखते हैं कि भाई ईडी के पास कोई काम धंधा नहीं है, कि कोई ऑपोजिशन को कहीं ना कहीं पे कुछ भी फिक्स करने की कोशिश करते हैं. और मनीष जी के साथ जब ऐसी बदसलूकी होती है, सत्येंद्र जैन जो खुद मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, ही इज अ वर्कaholic ऑफ अ पर्सन, ही इज नॉट इवन अ पॉलिटिशियन, ही इज जस्ट अ वर्कaholic, ही जस्ट नोज हाउ टू रिड्यूस the cost when it comes to everything. He saves 100 crore on an average in every flyover. It's because of that money that we've been able to provide free medicines in Delhi. He's been able to create the cheapest mohalla clinics in the world almost in terms of the prototype of vaccine. And if this is what happens with them, clearly जनता जानती है, जनता can see through this. Mr. Master is a new मन खड़ा करते रहता है. एक बहुत बड़ा एक people have suddenly started asking for a white paper of relationship between Khalistani Mr. Pannu and Aam Aadmi Party. बोले कि the Khalistanis worked a lot. If you want to answer this particular thing, the Khalistanis worked a lot to see that Aam Aadmi Party wins. In fact, भिंद्रनवाले के नाम पर कोई अकाउंट खुला था और उसमें करीबन $6.7 million ट्रांसफर हुआ था. फिर ultimately the name was changed. You know, if you want to answer this, it could be just. But do you want to talk on the subject? No, I just want to say quickly that there is absolutely no support for the so-called K-word in India, in Punjab or anywhere else when it comes to the Indian diaspora. That's point number 1. Point number 2, there is no connection between the Aam Aadmi Party and the K people or whatever else, whoever else may say. There is a government here. If the government feels that they have some evidence on us, let them take action. The fact is that they cannot because they don't have anything. तो ये जो आप जो बोल रहे हैं, ये जो अमित मालवीय और जो इनकी जो राइट विंग, इनका जो प्रोपेगेंडा आर्म है, जहाँ पे वो झूठ बोल के उनको लगता है कि वो झूठ इतनी बार बोलेंगे और वो मीडिया में एम्पलीफाई हो जाएगा, और इनके जो गोदी मीडिया जो है, जैसे आपको पता है कि क्या चल रहा है, किस तरीके से एक नैरेटिव फिक्स किया जाता है, और ऐसे ही नैरेटिव में उनको लगता है कि पीपल वोंट बी एबल टू सी थ्रू दिस. बट दिस इज ऑल रबिश. This is not even factual. ये जितने भी ये लोग हैं, these are all ISI operatives. ये सब पाकिस्तान वाले propped up वाले चीजें हैं. Please, that should be tackled. Please use the Indian defense preparedness towards that. But all of this is ridiculous. To just somehow कोई भी anyone who basically stands up for the government, उसको बस anti-national करार दिया जाता है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम. Mr. Bhaskaran, is Nari Shakti Vandan Adhiniyam, Mr. Modi claims it a landmark achievement in Indian democratic process. He said, लोग सिर्फ सोच रहे थे 27 साल, हमने 2 दिन में करके दिखा दिया. India Alliance also right now talking about caste census. Rahul Gandhi ji कह रहे हैं कि 2024 immediately coming to power, I will implement this caste based census. Mr. Modi says, I am among the few OBC prime ministers. The Congress never thought of it in 75 years, 60 years. So how do you see this?
where Nari Shakti Adhiniyam is concerned and caste census, the Aam Aadmi Party stand? Ruben ji. No, the Aam Aadmi Party stance has always been that women should be given their rightful dignity, honor and position when it comes to Indian politics. And when we mean women, we just don't want the Behan Beti brigade, which is exactly what happens when it comes to present women's reservation when it comes to local bodies. RKB साहब जानते होंगे कि किस प्रकार से अगर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या जिला पंचायत में या जिला परिषद में जब चुनाव होते हैं स्थानिक निकाय के, तो वहां पे एक तरफ से जेन्युइन जो वुमेन लीडरशिप है वो ना आकर ये बहन बेटी वही चीजें वो इलेक्ट हो जाती हैं और फिर पावर बिहाइंड द थ्रोन है वो प्रॉक्सीज हो जाती हैं और वो जो उनके जो हस्बैंड्स हैं, उनके जो भाई हैं, उनके जो पिताजी हैं, वो प्रॉक्सी तरीके से रूल करते हैं. सो वी ऑब्वियसली डोंट वांट दैट, वी वांट जेन्युइन वुमेन्स एम्पावरमेंट. लेकिन ये एक वापस से मोदी जी ने एक शगुफा छोड़ा कि वापस से कि मोदी जी ये इवन आप देख लो ना, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो डीमोबिलाइजेशन हो जो हमने देखा कोविड लॉकडाउन में, तो इनको बस केवल बड़े अनाउंसमेंट्स करने का आई थिंक ही इज एडिक्टेड टू इट and it doesn't really have any immediate impact. I mean, if it was really this important, he should have said, okay, we'll basically get the reservation right now. Why do you have to wait for the next round of Lok Sabha elections and the next round of delimitation and consensus and all of this? अभी का भी दे दो ना आपको, अगर आप इतना फार रीचिंग वगैरह सब कुछ है तो अभी का भी दे दो. पॉइंट इज कि ये मोदी जी केवल वर्च्यू सिग्नलिंग कर रहे हैं, इनको करना तो है नहीं, ये बस केवल ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ हमने कुछ किया विदाउट डूइंग एनीथिंग. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द बीजेपीज 10 years of rule is कि वो ऐसे बताते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन करते कुछ है नहीं. नाउ कमिंग टू द कास्ट सेंसस सर, कास्ट सेंसस इज extremely important in this country because whether we like it or not, caste is a reality which is experienced by millions of Indians. Okay, and maybe हमें लगता है कि because we are part of the English speaking elite and we come from the cities कि यहाँ पे caste system हमें impact नहीं होता. I still remember in college, at St. Xavier's College, one of my professors, the great Nandini Sardesai, who used to teach me sociology, would tell me that if you don't know what your caste is, then you essentially come from the upper caste. So that said, when caste is a lived reality and is essentially an impediment when it comes to equal opportunity for large segment of the population, it is extremely important to see what exactly has happened. And we've seen what the BJP has done when it comes to the Maratha reservation. They've bungled it. We see what the BJP did when it comes to Lingayats and the Vokaligas in Karnataka. So the BJP has to create some so-called othering story, and in order to create this othering story and polarize the electorate, it has to come up with these so-called fictions from time to time. So in effect, what you're really saying is, Ruben, what you're really saying is, Hindu versus Muslim, now caste versus caste. Is that what's going to happen now? No. Let me correct myself. BJP does Hindu-Muslim politics. Yes. What we are essentially saying is we need to do politics of development. We need to look at what exactly is the position of so many other castes when it comes to reservation, when it comes to affirmative action. Has it actually worked for them? Has it not worked for them? What has happened to minorities when it comes to these communities? So we want to look at holistically. We want to look at who the marginalized are, and to what extent has affirmative action worked for them and not. So this is basically a policy exercise. Why is this being made into a political issue? ये तो केवल आपको ठीक तरीके से आपको शासन करना है, आपको आपके प्रशासन को ये सारी But that will take a very long time. I tell you what, if we have a discussion on caste, it will take a very, very long time. We need a whole day for it. But chalte, are there any more demonstrations planned? Are there more programs planned with regard to Mumbai? क्या मुंबई में Mumbai Aam Aadmi Party, you, Preeti Sharma Menon, and all the rest of your chaps, are they planning some more demonstrations with regard to A, the manner in which people have been arrested, and B, just a case in point, journalists have been raided? Ruben. No, I just go to the journalists have been raided before because I know Gautam Bhatia personally. I am a huge fanboy of his legal acumen.
And when someone like him, who is essentially a first-rate legal scholar, who comes up with original research, one of the few bright legal minds in this so-called legal firmament, if he is basically being penalized and named in the FIR for giving legal opinion, that is dangerous. It's essentially a message to all the lawyers to say that, hey, you need to toe the line, you need to fall in place. You need to fall in place, else we're basically going to come after you. And that is extremely problematic. What has happened with journalists is extremely problematic. UAPA, we saw what happened when it came to Bhima Koregaon. Yes. I personally know Stan Swami through my principal at St. Xavier's College. And the man had just asked for a straw because he had Parkinson's and he was denied that. And there was this trumped up charges. And we have international agencies, that was terrible. Independent investigations say that there was evidence actually planted on his laptop. Yes. So we've been seeing this again and again. It's not about NewsClick, or it is not about some journalist or the other. It's about sending a message to say that, hey, we're going to come after you, and it doesn't matter who you are. As long as you don't toe the line, we will come after you. And that is deeply, deeply problematic. That is degrading the quality of our democracy. We may not like the journalists. I don't like journalists asking me a few questions as a spokesperson of the party, but that doesn't mean that they shouldn't exist. That doesn't mean that they don't have a right to do what their job is. Their job is to ask questions, and I think we should respond to questions. That's point one. Point two, with regards to what's going to happen, I am confident that the manner in which the entire hearings have gone, October 12th को जेल के ताले खुलेंगे और मनीष सिसोदिया छूटेंगे. मुझे पूरा भरोसा है कि October 12th को यही होगा, and I think that will also be extended to the other people who are incarcerated, क्योंकि ये बहुत तमाशा हो गया. जितना ये खींच सके वो खींच चुके, लेकिन हमें हमारी जुडिशरी पे, हमारी न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है, और हम आशा करते हैं कि October 12 को हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा. But right. Having said that, yes. अभी हम wait and watch हम आजमा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं आपके द्वारा ये कहना चाहूंगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप, ऑलमोस्ट 20 to 23 people were actually arrested, और एक पर्सन को 4 पुलिस के वैन्स, 6-7 पुलिस ऑफिसर्स, मतलब I don't know, मतलब when did we become a threat to the state? पुलिस हमको जानती है. You've been called Naxalites before. You've been called urban Naxals. No, we are not Naxalites. We don't support. You were called urban Naxals by the Prime Minister himself. He called you urban Naxals. Vivek Agnihotri and Prime Minister Modi can come up with their dialogues. They're all, कभी-कभी ये कोई नेता वगैरह सब अभिनेता कम है, ये तो एक कठपुतली है. But Prime Minister says that you are interested in photo opportunities, not the Prime Minister. He says, you guys, he says the opposition, the India Alliance, go to the fields, click photograph, but you got nothing to do with the poor and downtrodden. Wow, lovely. Ruben, I think so I'll just end by basically saying, see, I was just looking at the figures, okay, and if you don't pull India out of poverty in the next 20 years, we are staring at a demographic nightmare. If we end up becoming old before we become rich, we will not have another opportunity to pull millions of our people out of poverty. And rather than focusing on skills, rather than focusing on education, rather than focusing on healthcare, rather than focusing on healthcare infrastructure, we have the BJP speak about some random rubbish. And that is supposed to be, that polarization, that so-called othering, that so-called discrimination is supposed to deliver India into the 21st century. That's rubbish. We are staring at a disaster if we don't pull people out of poverty in the next 20 years. And that should be what our focus should be. And Modi ji should be saying कि नहीं, Arvind ji के तुलना में हम उससे अच्छा कर रहे हैं. And we would let there be a competition. And that should be what India's politics should be about. But you should be very happy. You should be very, very happy. Everybody is adopting the Kejriwal model. Everyone all over is adopting the Kejriwal model. That's exactly what Arvind had said 4.5 years ago. I still remember he had said, every state will now demand what we are providing in Delhi. And that's exactly what's happening. And by the way,
just for the information of our viewers, once again I am repeating this, Aam Aadmi Party was the first party actually to talk about education and healthcare. The only party which made that into an election issue, and for that our respect for you will always be there. Fantastic job. Ruben Mascarenas, thank you very much for joining us. All the very best to you. Thank you very much. Namaskar. Thank you so much. Thank you. Well, it's a bit of a problem really, isn't it, Pradeep ji? Ke matlab, yaar, do you think ye 12 तारीख को the department will come up with a new angle totally? They might come. We need to investigate this angle too. I mean, there's a new find. We found new evidence, and we need to substantiate the evidence. So you need to give us. Central agency will always get some time. We need further custodial interrogation. And after 3 months or 4 months, they will say, "Where is the evidence?" Again, the court will ask him, and then. Unless a shred of evidence. Unless the court just puts his foot down and says, "Thank you very much, he's been with you for such a long time, and anyway he's in judicial custody, he's not in your custody, so out he goes. Thank you very much." There is a possibility that might happen. We hope it happens. We talk about independent judiciary, sturdy independence, judicial integrity, and intellectual integrity. We need to enforce that. I think Mr. Modi has done a wonderful job in so many areas. Now, it is these aberrations which make me question some of his advisors and as to what they're doing. Because at the end of the day, by doing this, you are hurting Mr. Modi's image. Because we've just done such a wonderful job. We've got 107 medals in the Asian Games. We've done a fantastic job where G20 is concerned. We've pushed back at Canada and told the Canadians exactly where they get off. We've told the Americans, hey, listen, you're our partners, but we don't answer to you, okay? And the Americans have said, right, thank you very much. We didn't mean that. We are off this. We don't want to involve. But when you do something like this, pick up these boys from our, without whatever, it gives me a great feeling. Unless, of course, the BJP is right and these guys are really guilty, and then I would be really heartbroken. I don't think so. But anyway, because I'll tell you what, if they were guilty, their lifestyle would be different. They would be wearing different kinds of clothes. They would be living in different houses. Of course, maybe they would not be living in different houses. Their families would be living in different houses. And what are we talking about? 1 crore, 2 crore? Yeah, Khan. I mean, this is absolutely crazy. It's like now that you've got that, what is that? Mahadev app, and so you're calling all the film stars over to your office for photo ops. I think this will also continue for some time. But in any event, let's see how that unfolds. But at the moment, with us from the NCP, we have Dr. Surena Malhotra ji. Dr. Surena Malhotra, namaskar. Namaskar. How are you, ma'am? How are you? Fine, I'm fine. Lovely, pleasure to have you on the show again. Thank you so much, ma'am. Thank you. और ये तो गजब हो गया कल तो शरद पवार जी खुद गए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने खुद गए बोलने के लिए, हाँ भाई मेरा नाम शरद चंद्र पवार है, मैं अभी जिंदा हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मैंने बनाई है, एंड दिस इज प्रूफ ऑफ लाइफ. जैसे कोई पेंशनर जाता है ना सरकार के ऑफिस में ये कहने के लिए कि भाई माय पेंशन इज कमिंग टू मी. आई मीन नोबडी एक्सपेक्टेड दैट. दिस इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग. जी सुरेना जी बोले. So it's basically the whole situation is a very bad situation. It is like the people whom he has sort of held their hand and he has brought them forward. He has taught politics to them, and these are the people who have, brought this situation on him. We really felt grieved, when seeing him waiting over there from 4 o'clock to 6 o'clock. Of course, he is a very strong person, and he sort of will stand over there and do whatever is needed to be done, and to show that yes, that this party certainly, I mean, it was Nationalist Congress Party is a baby of the honorary Sharad Pawar ji. There's no question about that. So how can these people do this and bring him in this situation? It is absolutely, as the JAIN Patil Sahib also has said, or many other leaders have said, it is like in a home when a child is brought up, and when the child becomes big, he wants to start his own something, but that doesn't mean that he has to take the parents out of the house. It is that sort of a situation. It is very, very, very bad. But that's exactly what seems to be happening. It is as if
But Ajit Dada Pawar and everybody else is telling their own father, get out because we don't want you anymore. Yes. I mean, this is crazy. I've never heard of such a thing ever in my life. This is absolutely terrible. So it is absolutely. I mean, this is low-level politics. This is absolutely low-level politics. It is very mean. It is very demeaning, and we never thought about it because Nationalist Congress Party. We always thought. I mean, it is. I mean, the main Pawar Sahib and all. It's a very high-level politics. You know, the level of the politics स्तर बहुत ऊंचा है. कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग औरंगजेब बन गए हैं. Exactly. मतलब आपने ये बात सही बोली कि कुछ लोग औरंगजेब बन गए. जैसे वो बता रहे हैं कि नहीं हमारे साथ पूरे इतने लोग हैं, इतने लोग, ऐसा नहीं है. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यही है और उसमें से कुछ लोग, कुछ एक छोटा सा जो गट है, छोटा सा ग्रुप है, वो ही बाहर निकला है. This is the fact. This is the fact. Dr. Malhotra, if you see the other way is it's a great leadership role model for the young generation of today. Sharad Pawar Saab. Now he is fighting back. Look at his age. Look, he has enjoyed public life in state, in center, in all the top positions. And here, at his age, when everybody thought that he's going to give up, he has gone to the election office on his own. As you said, waits there for 2-3 hours or 4 hours, fights it out. Now, this is the first time Sharad Pawar Saab doesn't have the center with him, nor does he have the state with him. He is alone and he is fighting it out. If you look at the other way, this is an inspiration for leadership where the management students are concerned. There can be no greatest, you can say, episode or showpiece where what is leadership about. Don't you think that, Dr. Malhotra? Exactly. It's an example. It is an example which so many years to come, the young leaders are definitely going to follow. This is what positivity is all about. And of course, he is not alone. We all the Karyakartas, all the people are with him. In fact, there was some people's census which was there. And the question was asked whether the NCP is Sharad Pawar or it is Ajit Pawar. So I think the 92% result was that NCP is Sharad Pawar and only 8% was NCP is Ajit Pawar. So that itself shows it is people's senses, people's this thing. So viewpoint. And as you can see, so many people, they thought that okay, such a calamity happened and he will be all alone. But no, he's not alone. Just 2 days back, there was a meeting in the working committee meeting in Delhi. There was from all the different states of so many people had come to be with him, to talk with him, to give their support to him. So that was a very great thing. And you could see, you could feel the love for him in everybody's heart. And everybody assured him. And of course, he assured us that okay, nothing is going wrong. So it was a very great thing to hear him that day. In fact, I personally believe that Mr. Ajit Dada Pawar may have done Mr. Sharad Pawar a big favor. Very frankly speaking, he has instigated him to come back and rebuild the party. Very frankly, it's very good for all of you. But rebuild the party, and one more thing, to bring the younger, the young people up. There are so many young people have now got a chance, and they are doing extremely well. So that will be the next step of NCP. How he's making so many leaders. So लेकिन सुनना मल्होत्रा जी, ये भी कहा जा रहा है, एक सर्वेक्षण के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अजीत दादा पवार को खुद को बड़ी मुश्किल पड़ जाए बारामती से जीतने में, अपनी सीट जीतने में मुश्किल हो सकती है उनको इस बार, अगर सामने शरद पवार साहब हैं उनके खिलाफ कैंपेन करने के लिए, और शरद पवार जी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको हराना बहुत मुश्किल होगा बारामती से. Oh, so definitely. Baramati से there is no question. Nobody else is going to be there. Supriya Tai will be there in Baramati. Baramati is like there is no question. मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैडम. ओके, विधानसभा की बात कर रहे हैं तो इसमें मतलब दो राय नहीं है. बारामती and Sharad Pawar, it is a very synonymous thing. The massive development which he has done over there. Baramati is a place where anybody comes from abroad also, we tell them, oh, you must go to Baramati and visit Baramati. Just see the things which are there, the development, everything. So there is no question about it. Dr. Malhotra, there was a pattern when Uddhav Thackeray lost
Shiv Sena and you lost the symbol. Now, you know, after what Devendra Fadnavis talked in that conclave, the channel conclave in which he said, Pawar Saab ne ye kiya, Pawar Saab ka, you know, he enforced the president's rules in Maharashtra, it was his idea, Sharad Pawarji's, and Sharad Pawarji's letter of not forming the government was drafted by Mr. Fadnavis in his own house. There was some correction to be made which Sharad Pawarji told Mr. Fadnavis, and Mr. Fadnavis incorporated the entire thing in the letter and submitted to the governor. And then Sharad Pawar Saab took a U-turn. Now, do you think there's a pattern that is being followed to see that the party and symbol goes to Ajit Pawar, and first thing starts by Devendra Fadnavis, you know, bad-mouthing Sharad Pawarji's efforts? That is always being done. They are the ones who sort of create all the lies, and then they talk it so often that, you know, some of the people, only their bucks believe. Nobody else believes all these things. So I mean, it is absurd. The things what they are talking, it's all absurd. These are all created for the NCP logo. But then NCP logo, as I always say, that it is a clock. Pawar Sahib is the battery of the clock. The clock will not function if Pawar Sahib, the logo doesn't lie with Pawar Sahib. It has to be Pawar Sahib. It is his idea. It is his idea of a logo which denotes progress. A clock always goes forward. So that's a progress. So this is Pawar Sahib's logo. There's no second thought about that. As we said, that only a small group of people have gone out from the party. It is gone. They have gone out from the party. It is not that they have taken the party out. No. लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि पार्टी सिर्फ एमएलए और एमपी से नहीं बनती है, पार्टी वर्कर्स से बनती है, और जितने भी वॉलंटियर्स हैं पार्टी के और पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनसे बनती है, रजिस्टर्ड मेंबर्स जितने हैं. एंड दैट बाय द वे इज अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग. ऐसा नहीं है कि तो इलेक्शन कमीशन अब जो मर्जी करती रहे, आखिर में इट विल कम अप इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. Supreme Court and Supreme Court, we believe in Supreme Court. Yes, we believe in Supreme Court. Supreme Court has been giving good rulings, so we believe that everything will fall into place properly. जी. और ये भी कहा जा रहा है कि अब टोटली एक नया ढांचा तैयार किया जा रहा है एनसीपी के लिए शरद पवार जी द्वारा. पूरे महाराष्ट्र में जहां से ये लोग गए हैं, वहां पर नए नेता, नए ऑफिस बेरर सबको अपॉइंट किया जा रहा है. इज दैट करेक्ट मैम? यस, डेफिनेटली. नए लोग तो आएंगे ही. जो जगह इन्होंने छोड़ी है उनसे बहुत अच्छे लोग आएंगे, बहुत कार्यक्षम लोग आएंगे. तो और पवार साहब, he always can check, bring out the youngsters, give chance to the youngsters, and that is being done. And you can see the energy whenever we are having the meeting, even in our political office. You can see the energy is so palpable. Everybody is geared up, now. So it was that atmosphere is a very much charged atmosphere. Nobody is feeling sorry about anything. They are all charged and they want to go ahead. When will the election come and when will they prove themselves and when will we prove to people that okay, it is only Sharad Pawar. तो पालक मंत्री बनवाने के लिए अजीत दादा पवार को रूठना पड़ा. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं गए, अपने घर के अंदर उन्होंने मीटिंग बुला ली, और ये एकनाथ शिंदे साहब और फडणवीस साहब जो है दिल्ली गए, उसके बाद वो पालक मंत्री बनाए गए. तो अब आगे जाकर भी इनको रूठना पड़ेगा हर चीज की. आगे आपने एग्जैक्टली सही बोला. मैं भी यही बात करने वाली थी कि उनको तो अभी बहुत सारी चीजों पे रूठना पड़ेगा. Do you think that it is so easily that Devendra Fadnavis and Shinde, who I think sees him as a threat, they will give him everything on the platter? No. He was getting everything in NCP. NCP में उनको बहुत अच्छी चीजें मिल रही थी, बहुत अच्छा मान मिल रहा था. अभी these are initial stages. Do you think that Fadnavis is going to, give all his rights to him? No. लेकिन बाकी सब लोग जो हैं, आप सबको अच्छी तरह जानती हैं मैडम. डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, यू नो एवरीबडी, दिलीप वलसे पाटिल साहब, सुनील तटकरे जी, ये सब लोग जो हैं शरद पवार जी के खास हुआ करते थे. अब मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी जाकर के हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं, अभी तो नहीं लग रहा. वैसे छगन भुजबल जी अभी तो नहीं लग रहा है जी. अभी तो नहीं लग रहा है. डू यू थिंक दे विल हैव द सेम काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, द सेम काइंड ऑफ ऑनर in this government as they used to have when they were with Sharad Pawar? Because at that time they were like kings. मतलब अजीत दादा पवार साहब को देख लीजिए, आप छगन भुजबल जी को देख लीजिए, आप सुनील तटकरे साहब हो, दिलीप वलसे पाटिल हो, मतलब एक भावकाल था सबका.
आज की तारीख में वो बचा है कि नहीं? वो बिल्कुल बचा नहीं है। उनको खुद को लग रहा है कि है, दे हैव गॉट सो मेनी पीपल, दे आर जस्ट व्हेनेवर हमारी पार्टी कुछ मीटिंग लेती है कि तुरंत उसके बाद में इफ यू जस्ट विद इन अ वीक और समथिंग दे होल्ड अ मीटिंग ओवर इन द सेम प्लेस एंड ट्राई टू प्रूव दैट नो दे आर मोर पॉपुलर, बट दैट इज नॉट सो। जो विचार सरणी थी, अजीत दादा पवार की भी जो विचार सरणी थी, उस समय छगन भुजबल जी जो बोलते थे, लोग क्यों अप्रिशिएट करते थे? क्योंकि वो लोगों की बातें करते थे, वो सब लोग लोगों के क्लोज थे। अभी ऐसी बात हुई कि हाउ कैन इतनी विचार सरणी टोटली बदल गई है, तो हाउ कैन यू बी फ्रॉम छगन भुजबल। प्रदीप जी एक सेकंड, कहने का मतलब ये हुआ कि अब अजीत दादा पवार, सुनील टटकरे और छगन भुजबल साहब को अपनी हर मीटिंग को जय श्री राम के साथ शुरू करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये। एग्जैक्टली। वाह, जबरदस्त। आई वुड लव टू सी दैट। सुप्रिया सुले जी हैज सेड दैट दिस इज, ये खूनी सरकार है, दिस इज अ खूनी सरकार। Nobody has resigned even after the tragedies in Nanded and Sambhaji Nagar. That is what Supriya Sule ji said. And then she further went to say that triple engine sarkar hai, but one engine is unhappy, one engine is not functioning. And she went on further to say, Dr. Malhotra, that क्या ये सरकार ने पिछले 3 महीने में कुछ भी काम किया हो राष्ट्र हित में या महाराष्ट्र के हित में या किसी के हित में? That is what Supriya Sule ji said. Now, how far is this truth? Is this Khuni sarkar? Is somebody had to resign, nobody resigned, and is one engine derailed? The thing is that there is a triple engine sarkar and उसमें the engines are not functioning properly. Derailment होना ही है, derailment होना ही है if they are not in coordination. See, basically आप देखिए कि इतने बच्चे मर जाते हैं, so many people die, and can you imagine? Just remember the time when it was COVID. During COVID, जो हमारे आरोग्य मंत्री थे राजेश टोपे जी, he was not even a doctor, but yet he functioned as a proper doctor. He, along with Uddhav Thackeray ji, they managed Maharashtra so well. If they hadn't been there, I wonder, I'm a medical doctor, I mean, what would have happened? What would have happened in Maharashtra during COVID? You just can't imagine. I mean, it was not only कि थाली बजाओ और तालियां बजाओ और कैंडल लिट करो. No, it was a most proper scientific, approach to COVID. In fact, we were quite active during the end period of COVID, where there was a scare of the pediatric COVID going to be there. And during that time, these people held so many different conferences with the pediatricians. They told openly, see, we are not doctors, but we want to learn from y'all. We want to learn before taking any steps. And believe me, they went so much in depth of everything, the medication, how to manage a pediatric emergency, and everything was so well planned. Had the pediatric COVID come in, they were all prepared. Starting from what would be the first step, how will it be in the villages and all that. So there was a meticulous planning, and I really respected. In fact, before that also, like Uddhav Thackeray didn't know it so well, but at the same time, when we saw the working of both these people, and of course the Mahavikas Aghadi all supporting them, it was really professional, thorough job. They were there and they were praised. And the MBA was praised by the Supreme Court, by the WHO, by the World Health Organization, exactly. And even by the COVID coordination committee, which was set up by the Prime Minister's office. Exactly. Dr. K.K. Paul, who was the chairman of the committee, he actually praised the way the Uddhav Thackeray government had functioned during COVID. And it was absolutely thoroughly scientific. And now, I'm sorry to say, what is Sri Tanaji, what is the level of medical this thing, where it has gone? But he is blaming Hassan Mushrif for it. Yeah, that's a blame game. How can he? No, he can blame Hassan Mushrif. Both are responsible, but he can't put his responsibility on other people. He is responsible collective responsibility for the functioning of a hospital. He is responsible for the medicines to be there, utilization of the medicine, everything. I mean, he is responsible for the health care actually. Supriya Sule ji, further said
look what is happening, who are not with the BJP. They broke Uddhav Sena because he didn't, Uddhavji refused to go along with the BJP. Sharad Pawar Sahab refused to go along with BJP, and you can see the crisis out. They not only broke the party, but they already also broke the family. She says Ajit Pawar was a part of the family. But Sharad Pawar ji, Ajit Pawar ji, they are relatives. BJP broke the party and broke the family. There, no, Rahul Gandhi ji bar keh raha hai ki opposition is being targeted. You got the Aam Aadmi Party, Kejriwal, his entire house is under scrutiny, finance is under scrutiny. Then you got Mr. Singh arrested, Sanjay Singh arrested. Before that, Sisodia. There's a continuous raids going on by NIA, Enforcement Directorate and Income Tax, various opposition leaders' houses that is started from October 2nd. Dr. Malhotra, this is a pattern that is being followed in Maharashtra and across the country. Is the opposition deliberately, without evidence, being targeted? Yes, certainly. They are being targeted because of this, all this. As the elections would be coming near, all these things will go on increasing, and everybody knows about it. And it is, as I said, it is ICE, it is income tax, C for CBI and ED. These are the three things which they are targeting the people with. Whatever, even Rohit Pawar was also put some environmental this thing, on the issue. His factory was raided. So whatever, whosoever talks gets raided or gets oppressed by them. But this is going to remain. So I really wish that Supreme Court is sort of telling them that you should not do that, you should not do such a thing. But I think they should, make it more forceful thing that, okay, such a thing should be stopped. Because it is absolutely unconstitutional. You can't go on doing such a thing. But then that is the way BJP does. BJP breaks the families. BJP tries to, for power, they will do anything. That is what is being seen. लेकिन डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, एक चीज है जो प्रदीप जी ने सवाल आपसे पहले पूछा कि जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी का सिंबल ले लिया गया, शिवसेना तीर कमान ले लिया गया, नाम ले लिया गया, तो मेरा ये कहना है, अरे भाई 1966 में बनाई हुई पार्टी जिसका नाम उद्धव ठाकरे के दादाजी ने दिया, प्रबोधनकर ठाकरे ने दिया शिवसेना का नाम, पार्टी बनाई उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे ने, और आज उद्धव ठाकरे के पास वो पार्टी नहीं है। तो अगर मान लीजिए इसी तरीके की बात एनसीपी के साथ होती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ होती है, तो खैर शरद पवार जी had already told Uddhav Thackeray, even if you do the symbol or the name, so what? We'll start under a new name, doesn't make a difference. So is he ready for that? Are you ready for that in case that happens? Because that seems to be coming. Because the BJP and the Ajit Dada Pawar group seems to be very confident that they will get not only the name but the symbol as well. In fact, the whole country unofficially knows the result. Yes, everybody knows what the result is going to be, ma'am. See, whatever the result may be, first of all, Pawar Sahib and all of us will be fighting for it. Definitely fighting for it. Some of the issues are slightly different from what it was with the Uddhav Thackeray's this thing. So we will see. But whatever it is, we are all with Pawar Sahib. Whatever the symbol may be, as you all know, Pawar Sahib has fought elections on various different symbols from the beginning. Yes. It was Bailon ki jodi thi. Different, lot of different symbols were there. So we are with Pawar Sahib. Whatever it is the ideology which is most important. We are with that ideology. We are with that secularism. We are with that openness and he looking after the oppressed people, thinking about the ladies, they're thinking about the women reservation, then thinking about even the Muslim section, the minorities, everybody. So we have that thought process. We believe in humanity, so we are going to be with him, whatever the right. That's just about it. Thank you very much, Dr. Sureena Malhotra. Always a pleasure talking to you, ma'am, and all the very best to you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Vande Mataram. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. Well, everybody knows what the result is going to be. Everybody knows what the result is. Mr. Pawar will have to look for a new symbol. Every NCB spokesman, I think you asked for the Tapase also yesterday, and he said everybody knows what the result is going to be. Yes. So I hope they have a new symbol ready. I think Mr. Pawar Sharad Pawar Sahib is ready before everyone. Yes. He said,
I'm not bothered about the party, I'm not bothered about the singer, I'm not bothered if no MLAs are there with me. In fact, that's what he said. One of the journalists questioned him, how many MLAs are with you? He said, none. Nobody. He says, none, nobody. I am alone. Yeah, as he says, I started off alone. I am still alone. And he is, by the way. And by the way, he seems to have, Mr. Chhagan Bhujbal differs. And he seems to have got new energy. Pradeep ji, he's got new energy. Got renewed energy. Oh God, I've not seen him so energetic and so passionate about things. He's And I think the Ajit Pawar faction has given the authority to Mr. Chhagan Bhujbal to take on Mr. Sharad Pawar ji, because everything that Sharad Pawar साहब बोलते हैं उसके काउंटर छगन भुजबल जी करते हैं, चाहे वो तेलगी हो, फाउंडिंग ऑफ द पार्टी हो, पार्टी फाउंडिंग करके पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने में छगन भुजबल पवार साहब के साथ कैसे थे, एवरीथिंग इट्स लेफ्ट आउट टू छगन भुजबल जी टू टेक ऑन counter Mr. Sharad Pawar. It will be very difficult to counter Sharad Pawar. Impossible. Right, and that's just about it from the both of us, Pradeep ji और मेरी तरफ से. That's just about it. आप सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. इट्स योर चैनल आफ्टर ऑल. वो जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा. कमेंट्स ज़रूर भेजिए. आई डोंट नो व्हाई वी गॉट अपने कमेंट्स ज़रा ज़रूर भेजें. आई वुड लव टू रीड आउट योर कमेंट्स एंड वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू tomorrow. Actually on Monday. We'll be back with you on Monday. And with congratulations to everybody. India has won 107 medals in the Asian Games. 107 medal. We are really and truly proud of our girls and boys. They've done a wonderful job. Absolutely wonderful. Brilliant, bloody brilliant. Jai Hind. आप सबको नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.